everyone, I'm Dipanchal and I welcome you all on behalf of Hyderabad Book Trust and Lama Khan. So, before we begin, I would like to briefly introduce our speakers for the day. We have with us the author Bhavar Meghvanshi. Bhavar was born into a Kapir Panthi weaver family in Sirdias, Rajasthan. He joined RSS when he was still in school and eventually left it when the casteist reality of the organization became clear to him. Right now, apart from the several other social political work that he's part of, Bhavar oversees the Ambedkar Bhavan in Sirdias. Bhavar will be in conversation with K. Srinivas. Srinivas is a senior journalist, poet, critic, social commentator. He has been the editor of Telugu daily Andhra Jyoti since 2008. Srinivas is an important voice in the Telugu literary scape. I would ask both of the speakers to please take the seats. Thank you so much. Before I ask K. Srinivas to speak, I would like Bhavar and K. Srinivas to please release the book for the audience. Yeah. Okay. Without taking further time, I would ask Srinivas to please share his thoughts. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరణలో పాల్గొంటూ స్వయంగా పుస్తక రచయిత పక్కన కూర్చొని దీన్ని పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. భన్వర్ మేఘవంశీ రాసిన నేనెందుకు హిందువును కాకుండా పోయాను. ఈ పుస్తకం చూసినప్పుడు, పుస్తకం టైటిల్ చూసినప్పుడు మనకు అందరికీ కంచె ఐలయ్య గారి నేనెట్లా హిందువునైతా అనే పుస్తకం గుర్తొస్తుంది. ఆయన మన నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థలో శూద్ర కులానికి చెందినవాడైన ఆయనను హిందూ మతం నువ్వు హిందువు అని చెప్తే ఆయన తన చైతన్యం నుంచి, తన అవగాహన నుంచి, తన అనుభవాల నుంచి తాను ఎట్లా హిందువు కాదో, తాను ఎట్లా భిన్నమైన సంస్కృతికి చెందినవాడో చెప్పే ప్రయత్నం ఆ పుస్తకంలో చేశారు. కానీ మేఘవంశీ గారు ఆయన తను హిందువు అనుకొని హిందువుగా తన హక్కులని క్లెయిమ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో హిందువుగా ఆర్ఎస్ఎస్లో చేరి తను అందరి హిందువులతో పాటు సమానంగా అనుకుని సమానంగా వ్యవహరించబోయినప్పుడు ఆయనకు ఎదురైన అనుభవాల్ని ఈ పుస్తకంలో రాశారు. నేను హిందువులు కావాలనుకున్నాను, ఎందుకు కాలేకపోయాను. ఇది పూర్తిగా మనకు ఒక భిన్నమైన ఎక్స్పీరియన్స్ని మన ముందు ప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఒక దళితులు తాను నిజంగా హిందువు కావాలనుకుంటే హిందూ మతం అతన్ని హిందువుగా ఉండనిస్తుందా, ఉండనిచ్చినా సమానమైన హిందువుగా ఉండనిస్తుందా, అతన్ని తక్కువ హిందువుగా మారుస్తుందా, తక్కువ హిందువుగా చూస్తుందా అనే ప్రశ్నల్ని ఈ రచయిత చాలా చోట్ల వేసుకుంటారు. ఈ నిజానికి బుద్ధుడంతటి వాడికి జ్ఞానోదయం కావడానికి 35 ఏట వచ్చిందని చెప్తారు బుద్ధుడికి జ్ఞానోదయం. కానీ మేఘవంశీకి 13వ ఏట నుంచి 18వ ఏట వరకు 5 సంవత్సరాల ఆర్ఎస్ఎస్ సాహచర్యంలోనే ఆయనకు జ్ఞానోదయం కలిగింది. ఆయనకు ఒక విరక్తి కలిగింది. నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకు నేను ఈ అవమానాలను ఎదుర్కొంటున్నాను అనే ప్రశ్నలు ఆయనలో వచ్చినాయి. వచ్చిన తర్వాత నిజానికి 18వ ఏట అంటే చాలా ఇంకా ఓటు హక్కు కూడా వచ్చే వయసు కాదు. అప్పుడు కలిగిన జ్ఞానోదయం నుంచి ఆయన సమాజంలో తనుగా వ్యక్తం కావటానికి, తనేమిటో తెలుసుకోవటానికి ఆయన పనిచేస్తూ పోయారు. పనిచేస్తున్న క్రమంలో చాలా విస్తృతమైన ఒక పాత్రికేయుడు అయ్యాడు.
ఆయన పాత్రికేయ అనుభవం చూసినప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ పత్రికల్లో మా అనుభవాలు చాలా తక్కువ అనిపించింది నాకు. చాలా తక్కువ అంటే చాలా చిన్నవని. అంటే జర్నలిస్ట్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా ఉంది. ఎందుకంటే క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేశారు. జర్నలిస్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మానవ హక్కుల ఉద్యమకారుడుగా రాజస్థాన్లో క్రియాశీలంగా ఉన్న వ్యక్తి బన్వర్ మేఘవంశీ. మేఘవంశీ జీవితం ఒక ఆశ్చర్యం కలిగిస్తే నాకు ఇంకొక ఆశ్చర్యం రాజస్థాన్ ఒక సరిదిద్దుకోవాల్సిన అభిప్రాయం అని నాకు అనిపించింది. ఉత్తరాది ప్రాంతాల గురించి కేవలం అక్కడ ఫ్యూడల్ సమాజం బలంగా ఉందని, ప్రజలు చాలా వీక్గా ఉంటారని, ఎటువంటి రెసిస్టెన్స్ లేదని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ 30 ఏళ్ల నుంచే దళిత నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వారితో సహా చాలా అట్టడుగు వర్గాల వాళ్ళు రాజస్థాన్లో క్షేత్రస్థాయిలో చాలా క్రియాశీలంగా పనిచేస్తున్నారు. ఈయన తన గ్రామంలో పనిచేసే ప్రాసెస్లో అరుణారాయ్ సమాచార హక్కు ఉద్యమం ఎంకేఎస్ఎస్తో ఆయన దారులు కలుస్తాయి. అక్కడ దాంతో చాలా కాలం ఆయన పనిచేశారు. అంటే అక్కడ మనకంటే పౌర సమాజం ఇంకొక పార్శ్వాన్ని చూసినప్పుడు ఆ పౌర సమాజం భిన్నమైన రీతిలో యాక్టివ్గా ఉందని, క్షేత్రస్థాయిలో చాలా బలమైన సెక్యులర్ ఉద్యమం నడుస్తూ వచ్చిందని, సామాజిక ఉద్యమం నడుస్తూ వచ్చిందని అర్థమైంది. ఉత్తరాది అంతా కూడా ఒకటే అని, ఉత్తరాది చాలా వెనకబడి ఉందని. వెనకబడి ఉంటామంటే వేరే అనేక రకాల ఇండైసెస్లో వెనకబాటుతనం ఉండవచ్చు, కానీ చైతన్యం విషయంలో అక్కడ మనం అది స్తబ్దుగా లేదు, చాలా యాక్టివ్గా ఉంది అని చెప్పడానికి రాజస్థాన్ గత 10 సంవత్సరాలుగా 20-30 సంవత్సరాలుగా రాజస్థాన్ పౌర సమాజం చరిత్ర కూడా దీంట్లో ముడిపడి ఉంది. కేవలం బన్వర్ మేఘవంశీ వ్యక్తిగత అనుభవం మాత్రమే కాదు, రాజస్థాన్ సివిల్ సొసైటీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఈ పుస్తకంలో మనకు కనిపిస్తుంది. దాని గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఉత్తరాదిలో క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందని ఆసక్తిగా చూడాల్సి ఉంది. ఇప్పుడే వసంత గారు గుర్తు చేశారు, 5 సంవత్సరాల క్రితమే మేఘవంశీ గారు, తర్వాత గుజరాత్లో జిగ్నేష్ మివానీ, తర్వాత యూపీలో చంద్రశేఖర్ రావణ్, ఇటువంటి నాయకత్వం ఎట్లా వస్తుంది, ఇటువంటి కొత్త రకం ప్రజానాయకత్వం ఎట్లా వస్తుంది, చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం. ఈ ముగ్గురిని పరిచయం చేయాలని తను అనుకున్నానని చెప్పారు. నిజంగానే ఈ ముగ్గురి ఆవిర్భావం ఒక ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఇందులో ఈ పాత్రికేయుడిగా అయిన అనుభవంతో పాటు ఇక్కడ దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మనకు ఆర్ఎస్ఎస్ లాంటి సంస్థలు, మితవాద సంస్థలు, అవి క్షేత్రస్థాయిలో యాక్టివ్గా లేవు. ఉన్నా కూడా ప్రజాస్వామిక లౌకిక ఉద్యమాలతో ముఖాముఖి తలపడే పరిస్థితులు, ఫేస్ టు ఫేస్ తలపడే పరిస్థితులు లేవు. కానీ అక్కడ చూస్తే గ్రామంలో ఈయన ఎదుర్కొన్నదంతా ప్రతి చోట ఆయన పాత్రికేయుడిగా కానీ, మానవ హక్కుల కార్యకర్తగా కానీ, తర్వాత ఎన్ని రకాలుగా పనిచేసిన సామాజిక కార్యకర్తగా కానీ ఎట్లా పనిచేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన డైరెక్ట్గా కన్ఫ్రంటేషను ఆర్ఎస్ఎస్తోనే మేఘవంశీ గారికి కలిగింది. అంటే అక్కడ విరుద్ధ శక్తుల ఘర్షణ అనేది చాలా ప్రత్యక్షంగా, ఇక్కడ కంటే చాలా భిన్నంగా ప్రత్యక్షంగా ఫియర్స్గా ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఆ ఘర్షణలోంచి, ఆ సంఘర్షణలోంచి, ఆ పోరాటంలోంచి వచ్చిన అనుభవం ఇది. ఈ అనుభవం ఇది మనకి ఇక్కడ పనిచేయాలనుకునే, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేయాలనుకునే వాళ్ళకి, ఇక్కడ పనిచేయాలనుకునే పాత్రికేయులకి, తర్వాత మతత్వం మీద చాలా క్రియాశీలమైన అర్థవంతమైన పోరాటం చేయాలనుకునే వారికి ఎట్లా చేయాలి అనేది ఇదొక మార్గదర్శకమైన ఒక హ్యాండ్బుక్ లాంటిది. ఎందుకంటే ఎన్ని పత్రికలు, ఒకటి కాదు, 2 కాదు, 2-3 రకాల పత్రికలు పనిచేయడం, పత్రికలు క్రౌడ్ ఫండ్తో చాలా చిన్న స్థాయిలో క్రౌడ్ ఫండింగ్ నుంచి పత్రికలు నడపడం, దాంట్లో ఒక్కొక్కళ్ళని మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు డిస్కరేజ్ చేసి, బెదిరించి విత్డ్రా చేయిస్తే మళ్ళీ తాను ఎట్లా డబ్బులు పూల్ చేసి ఆ పత్రికను నడిపాడు. ఇవన్నీ కూడా చాలా రిచ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, చాలా గర్వపడాల్సిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా. కాబట్టి నేను ఎందుకు హిందూ కాకుండా పోయానని చెప్పినప్పుడు, ఎందుకంటే హిందూ మతమే ఇంక్లూజివ్ కాదు అనే సమాధానం ఆయన అనుభవం నుంచి చెప్తారు. ఆయన నిజానికి చదివినప్పుడు నాకు ప్రశ్న వచ్చింది, నిజంగానే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కులపరమైన
అంతరాలను తొలగించాలనుకుని అందరినీ ఇంక్లూజివ్గా చేసుకుని ఉంటే ఎట్లా ఉండేది? మనం దాన్ని ఫైట్ చేయగలిగే వాళ్ళమా? హిందూ మతంలో అంతర్గతంగా ఉన్న అంతరాలని వాళ్ళు నిజంగానే అడ్రస్ చేసి ఉంటే, మేము ఎప్పుడైనా నా మిత్రుల్లో కూడా చాలామంది ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తూ ఉంటాను, మీరు హిందువుల్లో కుల అంతరాల గురించి మీరు ఎందుకు అడ్రస్ చేయరు? అస్పృశ్యత గురించి అయినా మాట్లాడండి, పోని దళిత సమస్య గురించి మాట్లాడండి, లేకపోతే వీటన్నిటి గురించి ఎందుకు మీరు మాట్లాడరు? దాన్ని అడ్రస్ చేస్తే హిందువుల్లో ఐక్యత అదే వస్తుంది కదా అంటే వాళ్ళ దగ్గర సాధారణంగా సమాధానం ఉండదు. నిజంగానే రేపు పొద్దున సంస్థలో కనుక వాళ్ళ మతత్వాన్ని అట్నే ఉంచుకొని కులతత్వాన్ని అడ్రస్ చేసి ప్రయత్నం చేస్తే నిజానికి చాలా ఎక్కువ ప్రమాదం ఉండేది. నిజానికి ఆ రెండు ముడిపడి ఉన్న విషయాలే. హిందూ మతంలో ఉన్న నిచ్చరమెట్ల అంతర వ్యవస్థ, తర్వాత బయట వాళ్ళు ఇంకొక 6వ వర్ణాన్ని 7వ వర్ణాన్ని తయారు చేసి హిందువుల్ని ఐక్యం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయటం. ఇప్పుడు చాలా చోట్ల మేఘవంశీ గారికి ఏంటంటే ఒక సందేహం ఏమొచ్చిందంటే, ఆయన నివసించే గ్రామంలో ముస్లిమ్స్ లేరు. ఆయనకు ముస్లింల నమాజ్ అజా వినిపించదు, ఎక్కడ మసీదులు ఎక్కడ లేవు. నా జీవితంలో లేని వాళ్ళ పట్ల నేను ఎందుకు వ్యతిరేకంగా ఉండాలి? వాళ్ళు మా జీవితంలో లేరు, ఎందుకు వ్యతిరేకంగా ఉండాలని ఆయన ప్రశ్న వస్తుంది. కానీ జీవితంలో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు చాలామంది. మేఘవంశీ గారికి లేకపోవచ్చు, కానీ చాలామందికి వాళ్ళ ఇరుగు పొరుగు గాను రోజువారీ చూస్తున్న వాళ్ళు గాను ముస్లింలు ఇతర మతస్థులు ఉన్నారు. వాళ్ళతో ఏవో సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆ సమస్యల్ని రాజుకునేటట్టు చేసినప్పుడు, ఈ మతత్వ శక్తులు రాజుకునేటట్టు చేసినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలనేది ఒక పెద్ద సమస్య. వాళ్ళు హిందూ మతంలో ఉన్న అంతరాలను అడ్రస్ చేయడం చాలా కష్టం కాబట్టి దళితులు కూడా ఉన్న చోటనే వాళ్ళు ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కించడానికి వాళ్ళకంటే కింద ముస్లింలను తీసుకురావడం ద్వారా వాళ్ళను తాము పైకి వెళ్తున్నాము అనే ఒక భావన కలిగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది మేఘవంశీ గారు చాలా స్పష్టంగానే కనిపెట్టి ఇది మొత్తం నిజానికి ఆయన జీవితంలో 18వ ఏటో ముగిసిపోయిన అధ్యాయం ఆర్ఎస్ఎస్. ఇది ఆర్ఎస్ఎస్ మీద మాత్రమే రాసిన పుస్తకం అనుకుంటే పొరపాటు. ఆయన ఈ నిచ్చెనమెట్ల అంతరాల సామాజిక వ్యవస్థలో తాను ఒక పూర్తి స్థాయి తాను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి, వ్యక్తం చేయడానికి, ఆచరణలో ఉండటానికి చేసిన స్ట్రగుల్ అది. ఎవరి మధ్య చేశారంటే ఈ ఆధిక్య కులాల మధ్య, తన ఆచరణను ప్రతిఘటిస్తూ దాన్ని అణిచివేయడానికి ప్రయత్నించేటువంటి మతత్వ శక్తుల మధ్య, తర్వాత ప్రభుత్వ యంత్రాంగం మధ్య, వీటన్నిటి మధ్య తన ప్రాక్టీస్ని చాలా వోకల్గా, చాలా ఫియర్స్గా చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఒక వ్యక్తి. కాబట్టి ఈ రైటర్ని చూసినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది, తాను చాలా అసర్టివ్గా హిందూగా కాదు, ఇంకోటిగా కాదు, దళిత్గా, లేదంటే ఈ దేశంలో ఒక విక్టిమ్ అండ్ ఫైటర్, ఈ రెండు అస్తిత్వాల నుంచి తాను గట్టిగా వ్యక్తం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఒక అనుభవం, ఒక జీవితానుభవం ఈ పుస్తకంలో కనిపిస్తుంది. ఇది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పాత్రికేయుడిగా నాకు చాలా గొప్ప మార్గదర్శకమైన పుస్తకం. అట్లాగే చాలామందికి సామాజిక కార్యకర్తలుగా, సరే దళితుల రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు, కుల వ్యవస్థను వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న వాళ్ళు, దళితులైన వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఈ పుస్తకం ఒక గైడ్ లాంటిది. వ్యక్తిగత అనుభవమే, కానీ ఆ వ్యక్తిగత అనుభవం ఒక సామాజిక సంఘర్షణని, సామాజిక సంచలనాన్ని మనకు పరిచయం చేస్తుంది. मैं आप सब लोगों को इस मौके पर सलाम पेश करता हूँ। लामकान का, हैदराबाद बुक ट्रस्ट का ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि आप सब लोगों के बीच में आकर के बात करने का ये अवसर मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्रीनिवास जी का भी कि उन्होंने बातचीत शुरू की। मैं तेलुगु भाषी नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाया उन्होंने क्या कहा, लेकिन क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया तो मुझे थोड़ा मैं पकड़ पाया कि क्या बात वो करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे जब गीता रामास्वामी जी का फ़ोन आया तो
मैं बिल्कुल मुझे सरप्राइज हुआ क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था कि इसका कुछ तेलुगु ट्रांसलेशन भी हो रहा है और ये छप भी गया है। तो मेरे लिए बिल्कुल एक आश्चर्य की बात थी। और ये शायद जो हमारे अंग्रेजी के प्रकाशक हैं एस आनंद, वो भी हैदराबाद सिटी से हैं, तो उनका शायद स्टाइल है वो कि जब तमिल में अनुवाद हुआ तब भी ऐसा ही मुझे एक फ़ोन आया, मलयालम में हुआ तब ऐसा ही फ़ोन आया, मराठी में हुआ तो किताब आ गई सीधी, फ़ोन भी नहीं आया, पंजाबी में भी यही हुआ और तेलुगु में भी यही हुआ। तो मैं आनंद को भी इस मौके पर याद करता हूँ, उनका जो यूनिक काम है और जिस तरीके से वो करते हैं। तो किताब के ही इर्द गिर्द में थोड़ी बातचीत करूँगा। ये किताब लिखने का आइडिया जो था ये 2002 में मुझे तब आया जब गुजरात जेनोसाइड हुआ और मैं कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल में एज ए वॉलंटियर वहाँ पर गया और वहाँ पर लोगों के बयान दर्ज करते हुए मुझे लगा कि मैं उसके बाद उधर रिलीफ कैंप्स में रुक करके थोड़ा और काम करूँगा। और मैं दोनों तरह के रिलीफ कैंप्स में भी काम किया, अलग अलग तरह के लोगों के साथ मुलाकात की और वहाँ उस माहौल में एक राम रहीम नगर भी मैंने देखा जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बहुत ही एकता के साथ रहे और उन्होंने अपने इलाके में किसी भी दंगाई को घुसने नहीं दिया। तो बहुत दर्दनाक कहानियां भी थी, बहुत तकलीफ की भी चीजें भी थी और बहुत उम्मीद की बातें भी वहां पर नजर आई। लेकिन जिस तरह की चीजें सुनी तो मुझे लगा कि ये मौका है कि मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है आरएसएस के साथ उसको कहना चाहिए। उससे पहले राजस्थान की सिविल सोसाइटी में और जगह पे हम ऐसे बातचीत तो करते रहते थे, लेकिन उसको कभी लिखने का ऐसा सोचा नहीं गया था। और आप जानते हैं कि मैं तो बहुत पहले एक टीचर था और फिर टीचिंग छोड़ करके मैं जर्नलिज्म में आया और मैंने सोचा कि मैं कुछ लिख करके कुछ लिखूंगा, लेकिन फिर मैं एक्टिविस्टों के चक्कर में आ गया तो मैं जर्नलिस्ट से सीधा एक्टिविस्ट हो गया। तो न तो जर्नलिस्ट रहा, न एक्टिविस्ट रहा, न टीचर रहा, मतलब अजीब सा एक सफर चलता रहा। तो जब लिखने का सोचा तो फिर क्योंकि अखबार में लिखने जैसा तो था मामला, लेकिन किताब को कैसे लिखा जाए वो एक चैलेंज था। और 2002 में जो सोचा गया उसको फिर वो 2-4 पेज लिखने के बाद में ऐसे ही रहा और कई साल बीत जाने के बाद जब 2014 में केंद्र में उनका मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तब मुझे लगा कि लोगों का थोड़ा व्यवहार बदल रहा है। जो लोग खुल करके बात करते थे सोशल मीडिया पर या बाकी जगहों पर, अचानक उनका धीरे धीरे थोड़ा शांत होने लगे और लोगों की भाषा बदलने लगी। कई सारे लोग जो बहुत लिखते थे, बोलते थे, उनका चेंज होने लगा। तो मुझे लगा अब ये अच्छा समय है जब उस कहानी को लिखा जाना चाहिए। और फिर मैंने लिखना शुरू किया 2014 में फेसबुक पर, और फेसबुक पर एक सीरीज लिखा मैंने कंटिन्यू 54 डेज तक, और उसका टाइटल था हिंदू तालिबान। और आप सोच सकते हैं कि ज्यादातर लोग तो नाम से ही भड़क गए, नीचे पढ़ने की लोगों को जहमत उठाई नहीं किसी ने। और फिर जिन्होंने पढ़ा उनको बहुत प्रतिक्रिया दोनों तरह की थी, जहां पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स 80% था और 20% जिस तरह का रेस्पॉन्स आ सकता था वो भी दूसरी साइड से भी आया। लेकिन उन सारा सीरीज लिखने के बाद हिंदी के कुछ पब्लिशर्स ने मुझसे संपर्क किया और बड़े पब्लिशर्स एक दो ने उसका स्क्रिप्ट मंगाया। और फिर मैंने उस फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पोस्ट का अपना एक तरीका होता है, तो उसको किताब के रूप में बनाने के लिए काफ़ी काम करने के बाद में जब स्क्रिप्ट दिया, तो स्क्रिप्ट देने के बाद में उसको पढ़ने के बाद वो हिंदी के जो पब्लिशर थे उन्होंने 4 साल तक उसको ऐसे ही घुमाते रहे। वो भेजते रहे, इसमें थोड़ा मिर्ची कम करो, ये कम करो। हमने कहा भाई मिर्ची कम करके मतलब क्या बनाएं इसको,
क्योंकि इसमें फैक्ट है और इसमें एक्सपीरियंस है। ऐसा मैंने अपनी तरफ से कोई कुछ फिलोसफिकल या कुछ और चीज़ें नहीं करी। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैंने लिखा है, तो मैं उसमें एक्सपीरियंस जो है उसको कैसे कम करूं कि मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ और ये नहीं हुआ, कैसे उसको एडिट किया जाएगा। तो फाइनली वो 2018-19 तक ऐसे ही पड़ा रहा और वो प्रिंट नहीं हुआ। फिर मेरे को उनके अंदर के लोगों ने बताया कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये किताब नहीं छपेगी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो 20-25 साल रह जाएं, तब तक तो ये किताब नहीं छपेगी। फिर इस किताब का मतलब क्या है? इस किताब को अभी आना चाहिए, क्योंकि उसका एक टाइमिंग और जिस वजह से लिखा गया। तो फिर जन संस्कृति मंच जो CPI-ML से जुड़ा हुआ जो संगठन है और सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस से जुड़े हुए लोगों का एक हिंदी पब्लिकेशन है नवारुण प्रकाशन, संजय जोशी, उन्होंने कहा कि मैं छापने के लिए तैयार हूं, लेकिन छापूंगा मैं तब जब उसका टाइटल आप बदल देंगे। मैं अंदर कुछ नहीं बदलाऊंगा, लेकिन टाइटल तो इसके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हिंदू तालिबान के नाम से छापा तो आप तो अंदर जाओगे ही, मेरा सारा कारोबार भी पूरा खत्म होगा और लोग पढ़ेंगे नहीं। इससे एक फालतू का एक ट्रबल क्रिएशन होगा। तो हमने नाम बदला और नाम तो थोड़ा ऐसा रखा जिससे वो कंफ्यूज हो जाए कि मतलब नाम में कुछ। तो हिंदी का नाम जो है वो था मैं एक कार सेवक था। कार सेवक जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए गए, तो वो उस तरीके से आई किताब। और जब किताब आई तो हमें लगा कि शायद कुछ तो उनकी तरफ से विरोध होगा। तो जैसे किताब छपी, मैं जिस शहर में रहता हूं उस शहर में वहां का जो लोकल RSS काडर था, उन्होंने कहा कि हम इस किताब को दूसरे दिन जलाएंगे वहां पर। और जो वहां लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था जिसने 50 किताब मंगाई थी, उनका एक व्यक्ति जाकर के उधर से किताब खरीदा और उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन सेकेंड डे उन्होंने बिल्कुल उस पर वो जलाने का प्रोग्राम रद्द कर दिया और बिल्कुल कुछ नहीं बोले। तीसरे दिन उनका कोई बंदा गया और वो 50 किताब एक साथ खरीदा उन्होंने, और उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि दोबारा किताब नहीं मंगानी इधर, ये किताब इधर नहीं बिकनी चाहिए। और उसके बाद वो चुप हो गए। मुझे लगा कि क्या हुआ कि उनके बीच में उन्होंने इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करी। बाद में एक उनका कार्यकर्ता ने मुझे एक चिट्ठी लिखा और कहा कि मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मैं RSS का कार्यकर्ता हूं और मैं आपसे मिलकर के इन सवालों के जवाब चाहता हूं। तो मैंने कहा जरूर, आप आकर के मेरे से मिल सकते हैं। और वो जयपुर में आया और आकर के उसने सबसे पहले जो कहा, उसने कहा कि मैंने अमेजोन से किताब मंगाई, लेकिन 2 महीने तक किताब को खोला नहीं मैंने, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ किताब है। तो मेरी पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन मैं पढ़ना नहीं भी चाहता था। तो मैंने RSS के एक बड़े प्रचारक को फ़ोन किया और कहा कि ऐसी किताब आई है और ये बंदे ने लिखी है। तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हाँ, मेरा नाम लेते हुए, कि हाँ मेघवंशी जी हमारे बहुत अच्छे स्वयंसेवक रहे हैं, आजकल थोड़े नाराज चल रहे हैं, उन्होंने कुछ लिखा है लेकिन उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है अपने को। और ये उनका सेंट्रल ऑफिस में तय हुआ कि इस किताब को ऐसे सोचना है कि ऐसी कोई किताब ही नहीं आई। और आपको ताज्जुब होगा कि आज तक अब 6 भाषाओं में अनुवाद के बाद और हिंदी में 5th एडिशन के बाद उनकी तरफ से किताब को लेकर के ऐसी चुप्पी है कि ऐसा कोई किताब आया भी है, लिखा भी गया है या कुछ हुआ है। क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से तय कर दिया कि अगर इस पर कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे तो लोगों तक इसकी रीच बनेगी और लोग इसमें उठाए हुए सवालों को उठाएंगे। तो वो अगर नहीं करने देना है तो बिल्कुल इग्नोर करो, बिल्कुल उपेक्षित करो। ये जो उनका अपना एक स्टाइल है, जो तरीका है, लोगों को बिल्कुल ये कहना है कि उनका कार्यकर्ता है, तब भी वो कह देते हैं कि हमारा तो कार्यकर्ता नहीं था। जैसे नाथूराम गोडसे के लिए कह दिया हमारा था ही नहीं वो। तो ऐसे ही उनका ये है कि ऐसी कोई किताब लिखी गई या ऐसा कोई व्यक्ति हमारे बीच में रहा, ऐसा भी नहीं है। तो खैर किताब आई और किताब का दूसरी तरफ जो रेस्पॉन्स था, मैं उसका जरूर आपको कहना चाहता हूं कि
राजस्थान के खासतौर पे दलित युवाओं ने इस किताब को लेकर के जो रेस्पॉन्स दिया वो अमेजिंग था। उसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे उसको प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन छोटे छोटे गांवों में जहां केवल 2 परिवार दलितों के हैं और पूरा गांव अगर आरएसएस का है, वहां भी 15, 20, 25 साल के युवाओं ने, एक दो युवा किताब मंगा करके किताब के साथ सेल्फी खींच करके सोशल मीडिया पर उसके बारे में लिखा उन्होंने। और जितना किताब के पेज थे उससे कहीं ज्यादा इसकी प्रतिक्रिया में लोगों ने लिखा। 600 पेज इस पर लोगों ने समीक्षाएं लिखी। और वो एक तरीके से विद्रोह था उन लोगों का आरएसएस के ठीक सामने कि हाँ, आपका बहुत प्रभाव इस गांव में है, बावजूद इसके भी आपके खिलाफ लिखी हुई किताब हमने मंगाई है, हमने पढ़ी है और ये हमारे पास है। तो वो जो प्रतिक्रिया थी वो मैं लगा कि शायद किताब के लिखने का जो एक उद्देश्य था वो कहीं न कहीं पूरा हुआ और एक डिस्कोर्स बना कि आरएसएस के अंदर जाति का सवाल क्या है। आप हिंदू मुस्लिम बाकी सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप कास्ट के इश्यू पर आपका क्या सोच है। और वो सारे सवाल फिर खड़े हुए कि आपने इतने सालों में जाति को लेकर कोई आंदोलन क्यों नहीं किया। आप गाय को बचाने का तो आंदोलन करते हैं, आप और कुछ चीजों का आंदोलन करते हैं, लेकिन आप जब दलितों की हत्याएं होती है उस समय आपका कोई भी आंदोलन क्यों नहीं खड़ा होता है। दलितों के साथ जब भेदभाव होता है, मंदिर में प्रवेश की बात होती है या कुछ भी होता है, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं। और हर जगह पर लोग इसको एक रिसोर्स बुक की तरह इस्तेमाल करने लगे। जहां जहां भी कोई चीज होती तो वो उसको पेश करते हैं कि देखो ये किताब लिखी गई। लेकिन बावजूद इसके उनकी तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया आज तक नहीं है। लेकिन दलित, आदिवासी और ओबीसी के युवाओं में खासतौर पे इसको लेकर के बहुत ही बढ़िया एक प्रतिक्रिया देखने को हमें मिला। दूसरा ये है कि चूंकि हमें यह भी समझ में आया कि जब तक हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जब तक हम आमने सामने जवाब नहीं देते हैं, तब तक आरएसएस का जो पूरा एक प्रोपेगेंडा है वो चलता रहता है। हमें यह भी समझ में आया कि जब आप खुल करके पब्लिकली आमने सामने बात करने की तैयारी कर लें तो वो ऐसे आपके साथ डिबेट में नहीं आते। 1 to 1 कन्विंस करना, बहुत उनका कान में मंत्र फूंक करके वो चले जाते हैं। लेकिन जब आप कहें कि ऐसे बैठ करके आपको बात करनी है, वो बिल्कुल इसमें नहीं आएंगे। और फिर हमने पूरे राजस्थान में जगह जगह पर इस किताब को लेकर के बातें करना शुरू किया, मीटिंग्स करना शुरू किया और उसका काफी कुछ ये मिला। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जैसा श्रीनिवास जी ने भी कहा कि राजस्थान का अपना एक इतिहास है। वो एक बहुत ही फ्यूडल स्टेट रहा है। उसके नाम में ही राजाओं का नाम है। राजस्थान का मतलब राजा। आप वहां जाएंगे तो राजस्थान का पर्यटन विभाग आपको फोर्ट दिखाएगा, राजा दिखाएगा, वो सारी चीजें दिखाता है। और पिछले 1000-1500 साल का पूरा आप हिस्ट्री को देखेंगे राजस्थान की, तो रेजिस्टेंस का कोई मूवमेंट नहीं है वहां पर। वहां कोई कबीर नहीं है, कोई रैदास नहीं है, कोई चोखा मेला नहीं है, कोई बिरसा मुंडा नहीं है, कोई अंबेडकर, फुले, पेरियार, ऐसा कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आता है। वहां कहने के लिए कहेंगे कि मीरा बहुत विद्रोह करने वाली औरत थी, लेकिन मीरा तो भक्ति करने वाली औरत थी, तो वो भक्ति में क्या विद्रोह होगा। आप या तो भक्ति करते हैं या फिर आप विरोध करते हैं। तो ऐसी जगह पर जहां पर डॉक्टर अंबेडकर का विचार भी डॉक्टर अंबेडकर के दुनिया से चले जाने के बाद में शुरू हुआ। पूरी जिंदगी अंबेडकर कभी भी राजस्थान के किसी कोने में नहीं आए। और जब पूना पैक्ट करके अंबेडकर अहमदाबाद में आए तो राजस्थान के हमारे दलित बुजुर्गों ने जाकर के उनका काला झंडा दिखाया, पुतला जलाया, उनके खिलाफ में पर्चे बांटे। तो हम वो लेगेसी से आते हैं। वहां पर अभी खुल करके दलित जो हैं वो मूवमेंट के साथ बन रहे हैं। बड़ा मूवमेंट एक तरीके से खड़ा हो रहा है। और आरएसएस को सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं से है तो वो चुनौती दलित मूवमेंट की तरफ से है। और इसलिए जब 2018 में एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ तो 6 जगह पर ऐसी एफआईआर दर्ज हुई राजस्थान में, जहां दलित और आदिवासी आंदोलनकारियों पर आरएसएस के दफ्तर से निकल करके हमले किए गए, भगवा झंडे लेके हमले किए गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमले किए गए।
तो जो हिंदू हिंदू की बात करता है आरएसएस, उसका एक दूसरा कैरेक्टर भी आप देखते हैं, जहां पर वो दलितों के अधिकार के लिए चलने वाले आंदोलनों के खिलाफ खड़े होकर के खड़े हो जाता है। तो एक वो भी चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपको करना चाहता था। मुझे कुछ कुछ चीज़ें गीता जी ने भेजी थी, तो मैं अकॉर्डिंग उसके ही थोड़ी सी बातें आपके सामने रखूंगा। एक जो चीज़ है कि आरएसएस का जो पूरा एक रणनीति है, जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, छोटे बच्चों पर पूरा काम, बड़े लोगों पर काम नहीं करना, छोटे छोटे बच्चों पे 8 से 13-14 साल की उम्र के बच्चों को पकड़ना, ताकि उनका कोई विचार अभी बना नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद वो ब्रेन वॉश करते हैं, वो ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं। वो ब्रेन जब बन रहा है, उसी समय लोगों के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो वो शुरू ही उनके प्रोग्रामिंग से जब लोग आ रहे हैं, उसमें बदलाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो चूंकि मैं भी जब गया तो मैं 13 साल की उम्र में था, और हमारे गांव में और कोई चीज नहीं थी। और आप अगर देखेंगे पूरा हिंदी बेल्ट में, मुझे नहीं मालूम कि आंध्रा तेलंगाना का क्या सिचुएशन है, लेकिन अगर हिंदी ये तो वहां पर जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, वो 90% टीचर, गवर्नमेंट टीचर जो हैं, वो आरएसएस का कैडर है। और वो वही लोगों को पकड़ते हैं, वही बच्चों को पकड़ते हैं स्कूल से। तो आपको जब आपका टीचर ले जा रहा है शाखा में, तो आपको लगता भी नहीं है कि स्कूल से कुछ अलग है, आपको लगता है कि स्कूल का ही एक और पीरियड आप उसमें जा रहे हैं। और वो टीचर के प्रति जो आपका रेस्पेक्ट है, वो टीचर जो आपको कह रहा है, आपको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो तो सही कह रहे होंगे ना, और क्या उससे आप कैसे गलत। उस उम्र में आप टीचर के प्रति तो बहुत मन में वो रहता ही है। तो हमको भी जब ले गए तो हमको भी ऐसा लगा कि भाई वही सारी चीजें। और फिर जब जो चीजें सिखाई गई, जब ये कहा गया कि संस्कृत देववाणी है, तो जब आरएसएस की शाखा में संस्कृत में आपको ऑर्डर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि देवताओं का ऑर्डर है ऊपर से, ये नीचे वाले लोगों का नहीं है। तो ऐसा एक दिमाग में आपके बैठता है। दूसरा ये सिखाया जाता है कि आपको चुना गया है इस ईश्वरीय काम के लिए, ये भगवान का प्लानिंग है, उसके लिए आप स्पेशली चुने गए। इस गांव में तो बहुत बच्चे हैं, लेकिन उनको नहीं चुना है, आपको चुना गया है क्योंकि आप स्पेशल हैं। तो ऐसे दिमाग जब बनता है, और पूरी शाखा में एक भी बार वो नहीं कहेंगे कि मुसलमान खराब है कि ईसाई खराब है, वो पूरे समय ये कहेंगे कि हम हिंदू बहुत अच्छे हैं, हमारा खून पवित्र है, बाकी मलेच्छ। बिना नाम लिए आप इनको ये सिखाओ कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जरूर कोई न कोई निकृष्ट होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई, आप पवित्र हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आपने दुनिया को सभ्यता सिखाई है, आपने दुनिया पे कहीं हमला नहीं किया, सारे हमले आप पर हुए हैं, बाकी सब लुटेरे हैं। इस तरीके से सारी चीजों का शुरुआत होता है। और मुझे लगता है कि 2-4 साल में बच्चा जो है वो पूरी तरीके से वो सीख जाता है। और जब मैं गया तब तो पूरा बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का पूरा मूवमेंट चल रहा था, और उसी समय हमको ये सिखाया गया है कि राम की जन्मभूमि पर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने आकर के और मंदिर को तोड़ा, उसके मलबे से मस्जिद बनाई है, और ये गुलामी का प्रतीक है। और इसके लिए आंदोलन करना मतलब देश की दूसरी आजादी के लिए आंदोलन करना। उस समय तो हम जिंदा नहीं थे कि हम लड़ पाते भगत सिंह के साथ या बाकी लोगों के साथ, लेकिन अब हम हैं और अब हमको लड़ना चाहिए। तो हम इस चीज के साथ आगे बढ़े। और फिर जब कार सेवा हुई, तो पहली कार सेवा में मैं भी गया। मैं 15 साल का था उस समय जब मैं कार सेवा में गया। और हम जो लोग गए उसमें ज्यादातर वो लोग थे जिनकी उम्र 14 से 20 साल थी, या फिर ऐसे लोग थे जो साधु संत और इधर उधर के लोग थे। कई सारे फैक्ट्री के मालिकों ने अपने मजदूर भेज दिए, उनका हाजिरी उधर चलता रहा और इधर ये आ गए। और बस पूरे तरीके से ऐसा बना करके भेजा गया कि राम के नाम पे मर जाएंगे तो दुनिया में आपका नाम अमर हो जाएगा। तो ये फिदायनी दस्ते जैसे होते हैं, वैसे बलिदान की भावना के साथ हम गए। हालांकि मैं तो पहुंचा नहीं बाबरी मस्जिद तक, वहां से पहले ही गिरफ्तार हो गए और फिर 10 दिन जेल में रहे आगरा में। और वो जेल भी क्या कोई जेल वेल नहीं थी, वो तो बिल्कुल एक ओपन स्टेडियम था।
तो उसमें क्या जेल होगी, और उसमें 1000 लोग थे, तो वहाँ भी शाखाएं लगती थी, वहाँ भी भजन कीर्तन चलते थे, और बस वही सारी चीज़ें। लेकिन मुलायम सिंह की सरकार थी तो वो नहीं हुआ कार सेवा का काम। और फिर मैं जब लौट के आया, लौट के आने के बाद में अगले साल 1991 में फिर एक दूसरा मूवमेंट खड़ा किया गया, मंदिर सौंपो या गद्दी छोड़ो। और ये जब हमारे अपने शहर में हुआ तो उस दिन नमाज का वक्त दोपहर का और हमारे जुलूस का वक्त एक साथ था, और मस्जिद के पास से जुलूस को निकलना था। तो प्रशासन ने यह कहा कि आपको अपना टाइम बदलना चाहिए या रास्ता बदलना चाहिए। लेकिन हमको लगा कि ये जो इलाका है ये क्या पाकिस्तान में है, ये अगर भारत में है तो हम जाएंगे, उधर से जाएंगे, उसी समय जाएंगे। और इस बात को लेकर के जब जद्दोजहद हुई तो कोई किसी ने पत्थर फेंके, फिर लाठीचार्ज हुआ, फिर गोली चली, और गोली चलने से ऐसे 2 लोग मारे गए जिसका उस दिन से कोई लेन देना नहीं था, न मूवमेंट से लेन देना था, न जलसे में आए थे, न इस पूरी चीज से कोई मतलब था। एक आदमी दिन में काम, रात में काम करता था, दिन में सोया हुआ था, उसने बाहर कुछ सुना, बाहर निकला और घर के बाहर ही उसको गोली लग गई। दूसरा आदमी मार्केट में कुछ खरीदारी करके लौट रहा था, उसको गोली लग गई। लेकिन दोनों ही मरने वाले जो थे वो हिंदू थे, और जब हिंदू मरे तो फिर शहीद हो जाते हैं, मुसलमान मरते तो फिर कहते हैं कि ये तो ढेर हो गए हैं। लेकिन चूंकि हिंदू मर गए तो उन दोनों को शहीद घोषित किया। और फिर जो अयोध्या में मरे, फिर ये मरे, इन सब का अस्थि कलश गांव गांव में ले जाया गया, और ये अस्थि कलश मेरे गांव में भी आया। और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। हालांकि बीच बीच में कई सारी चीजें थी, क्योंकि मैं उस समय भी कविताएं लिखता था, कुछ कहानियां लिखता था, तो मेरा लिखने पढ़ने का तो एक रुचि था। लेकिन कुछ सवाल भी मैं पूछते रहता था, क्योंकि हमको जो आरएसएस में ले गया वो भूगोल का टीचर था, और ये ज्योग्राफी के जो टीचर है ये हमको क्लास में तो पढ़ाता है कि सूर्य जो है वो आग का गोला है, और वही शाम को आकर के हमको सूर्य नमस्कार करवाता था। तो हमने पूछा कि गुरुजी क्या है, उस आग का गोला है कि भगवान है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि शाखा में तो सूर्य देवता है और क्लास में जो है वो आग का गोला है। आप इस जवाब में आरएसएस का तरीका देख सकते हैं कि उनका जो दोगलापन है वो ऐसे ही लोगों को कन्विंस करते रहते हैं और सारी चीज करते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें होती रहती थी। फिर बीच में कोई हमारा एक स्वयंसेवक जो था वो ओशो रजनीश का चेला बन गया, तो उसको समझाने के लिए गए, तो मेरे को भी साथ ले गए। वो तो कुछ बदला नहीं, पर आते वक्त में उसने ओशो टाइम्स दे दिया प्रचारक को। वो प्रचारक हाथ में नहीं लेना चाहता था, तो मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैं लाया तो मुझे इंटरेस्ट था कि मैं पढ़ूं उसको। तो मैं जब पढ़ना शुरू किया तो वो प्रचारक ने छीन करके और ऊपर फेंक दिया उसको, कहते हुए कि इसको पढ़ने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाती है। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट जगा कि ऐसा कौन आदमी जिसको पढ़ने से विचारधारा भ्रष्ट हो जाती है। तो मैं चोरी छुपे थोड़ा ओशो टाइम्स वगैरह पढ़ने लगा, और थोड़ा थोड़ा दिमाग उससे हिलने लगा। तो ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन जब ये अस्थि कलश यात्रा आई और मेरे घर पे खाना बना, तो मेरे फादर जो हैं वो कांग्रेस के लीडर रहे, उनको मेरा आरएसएस में जाना कभी पसंद नहीं आया। पहले खेलने जाते थे, उनको लगता है बच्चा खेलने जा रहा है, लेकिन जो टोपी ओपी पहन करके जब पूरा ड्रेसअप होकर के जाना शुरू किया तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। लेकिन तब तक मैं दो साल इधर रह लिया था, तो मुझे लगता था कि हाँ ये तो विरोध करेंगे ही, ये कांग्रेस के लोग तो विरोध करते ही हमारा। तो ऐसे सोच के साथ चल रहा था। जब ये अस्थि कलश आया, हमने खाना बनाया, तो मेरे पिताजी ने कहा वो खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। वो दोगले लोगों को मैं जानता हूँ, वो हमारा खाएंगे ही नहीं खाएंगे। मैंने कहा आप जानते ही नहीं है, हमारे आरएसएस में बिल्कुल कोई छुआछूत नहीं चलता है, सब हिंदू एक हैं। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, फिर चलो बनाओ खाना। तो खाना बना, और खाना खाने के लिए जब आमंत्रित किया, तब वो आरएसएस के जो नेता थे वो मुझे एक तरफ ले जा करके और हाथ रख करके कंधे पर समझाया उन्होंने कि अरे बंधु, आप तो जानते हैं हमारा हिंदू समाज बहुत विषम है अभी, तो हम तो आपके घर खा लेंगे, आपके साथ एक ही प्लेट में खा सकते हैं, लेकिन ये साधु संत और दूसरे लोग जो आए हैं इनको थोड़ा तकलीफ होगा। तो ऐसा कीजिए कि आप पैक करके दे दीजिए, अगले गांव में जाके इनको खिला देंगे। मतलब ये कि उनको ये भी ना बताए कि एक दलित के घर में खाना बना है, चुपचाप उधर खिला देंगे। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये, लेकिन मैं फंसा हुआ था, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा कि वो दोगले नहीं खाएंगे इधर, और मैंने कहा नहीं वो तो खाएंगे, ये आप जानते नहीं, आपके कांग्रेस में चलता है ये सब, हमारे यहाँ संघ में नहीं चलता। तो मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, जान बची कि ये पैक करके ले जा रहे हैं, आगे खा लेंगे। लेकिन आगे ले जाने के बाद भी उन्होंने खाया नहीं, बल्कि वो 3 किलोमीटर दूर ले जा करके फेंक गए वो खाना।
वहाँ जाके रात 11 बजे उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में खाना बनवाया, 12 बजे रात में खाया। और दूसरे दिन उस टीम में जो मेरा एक क्लास फेलो शामिल था, उसने जब आकर के मुझे बताया कि ये सब कुछ हुआ आपके यहाँ जो खाना गया उसके साथ हुआ, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कर सकते हैं। उसने ले जा करके बताया कि कहाँ फेंका। और वहां जाने के बाद फिर मैंने सोचा कि जिन लोगों के लिए मैं अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार हूं, वो अगर मेरे घर का खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, तो इस हिंदू राष्ट्र जिसको मैं बनाना चाहता हूं उसमें मेरी औकात क्या है, मेरी जगह किधर है। और वहां से एक शुरुआत, एक दूसरी सफर की शुरुआत होती है। फिर मैं वहां से जाकर के उन लोगों से जाके मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपके घर का खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, किसने कहा नहीं खाया। तो मैंने कहा ये पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, ये इन्होंने। जब उनको पता चला कि हाँ पता चल गया, तो तुरंत फिर और बदल गया उनका। उन्होंने कहा नहीं, वो पीछे लेकर के जो बैठे थे जीप में, वो जीप जब मुड़ी स्पीड में थी तो खाना नीचे गिर गया, और वो गिरा हुआ तो कैसे खा सकते हैं, इसलिए खाना पड़ा। तो इसके बाद जब भी मैंने इस सवाल को उठाया, निचले लेवल से लगा के ऊपर तक, उनका ये कहना था कि अरे बंधु, बहुत छोटा सा बात है, इतनी छोटी बात पर क्यों आप ध्यान दे रहे हैं, आप तो राष्ट्र निर्माण में लगो। मुझे लगा क्या राष्ट्र निर्माण करना भाई, मेरे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, छुआछूत हुई, उसकी कोई बात नहीं करनी है, और राष्ट्र निर्माण करना है, तो वो सा राष्ट्र जो बनेगा उसमें क्या है हमारे लिए। तो इस तरीके से ये शुरुआत हुई, और फिर आमने सामने का ही संघर्ष रहा। ये समझिए आपकी 1992 से लगा करके अब तक पूरा जो संघर्ष है वो बिल्कुल आमने सामने का है। मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके को मैंने छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं ये किताब लिख करके या बाकी चीजें करते हुए और बाहर निकल करके कहीं कमरे में बैठ करके कुछ करना है। हर दिन उठ करके उन्हीं गांवों में उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के बात करना, और उनका जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ काम करना। और फिर वहां हमने हिंदू मुस्लिम एकता की भी कुछ चीजें शुरुआत करी, सूफी संतों के साथ कुछ एंगेज किया, और बहुत अच्छा। आज की तारीख में, आज सोचिए आप कि कितना माहौल खराब है, उसके बावजूद जिस सूफी संत की मैंने किताब में जिक्र किया, सैलानी सरकार का, उनके वहां पे सालाना उर्स में 1 लाख लोग अभी भी आते हैं, और उसमें हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, बाकी लोग ईसाई भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। कव्वाली भी होती है, भजन भी होता है, भगवा पहने हुए लोग भी आते हैं, और हरा कपड़ा पहने हुए, टोपी पहने हुए भी, और सारे लोग, तरह के लोग। और वो भी एक तरीका है हमारा ये कहने के लिए कि हम आपकी नफरत की राजनीति के खिलाफ हैं, और हम इसको सहन नहीं करेंगे। ये देश सबका है, सारे लोगों का है, सबकी इसमें मिल्कियत है, कोई किसी का बपोती नहीं है आपकी अकेले की। तो उस तरीके से हमने काम शुरू किया। हमने लिटरेचर के जरिए भी उनको जवाब देने की शुरुआत की। तो एक डायमंड इंडिया नाम का एक मैगजीन चलाया हमने, और उसका पूरा रखा हमने कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और करप्शन के खिलाफ। और उसके जरिए भी खुल करके जहां जहां उनका पब्लिकेशन जाता है, उनके पंचजन्य, पाथेयकन और बहुत सारे माउथपीस जाते हैं, वहीं पर टारगेट करके हमने भी अपने पब्लिकेशन को भेजना शुरू किया। हालांकि वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब कुछ ऐसे इश्यू उठाए हमने, वहां पर एक कलंदरी मस्जिद गिरा दी, उसका इश्यू जब उठाया हमने, तब फिर हमारे जो उसमें इन्वेस्टर थे और जो डोनर थे वो फिर गायब हो गए। उन्होंने कहा अरे हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं के खिलाफ बातें की जा रही है। तो आज के दौर में पब्लिकेशन भी एक बड़ा चुनौती का काम है। गीता जी चला रही हैं, पता नहीं किस तरीके से वो चला पाते होंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, खास तौर पे हिंदी भाषा के इलाके में, क्योंकि वहाँ आप सत्यनारायण की कथा और हनुमान चालीसा और रामचरितमानस छाप दो तो वो तो लाखों में बिक सकता है, लेकिन आप ऐसा कोई चीज जिसमें आप लॉजिक की बात करें, जिसमें आप साइंटिफिक सोच की बात करें, संविधान की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, उसके लिए जगह निरंतर एक तरीके से कम होती जा रही है। तो ये तो कुछ चीज़ें थी। और फिर एक और चीज़ थी कि क्योंकि जब आरएसएस से मैं निकला तो मैं तो निकल गया, लेकिन जो आरएसएस मेरे अंदर चला गया उसको बाहर निकलने में कई साल लगे, क्योंकि जो भर गया अंदर वो इतना खतरनाक था, और वो बिल्कुल बचपन में भरा। तो जब मैं
मुस्लिम बस्ती से निकलता, मस्जिद के पास से निकलता, तो मेरे दिमाग में कहीं मेरे अवचेतन में कहीं था कि इसके नीचे कुछ हथियार होंगे, या यहाँ पे कोई खींच लेगा, कोई मार डालेगा, कोई ये कर देगा। तो ये सब चीज़ों को निकलने में बहुत मुझे लगता है कि समय लगा, और ये निकालने में मुझे सहायक रहा डॉक्टर अंबेडकर का लिटरेचर पढ़ना, फूले का लिटरेचर पढ़ना और पेरियार का लिटरेचर पढ़ना। मुझे लगता है कि अगर ये लिटरेचर ठीक से लोगों के बीच पहुंच पाए, फूले, अंबेडकर, पेरियार का, तो बहुत सारे दलित, आदिवासी या जो बहुजन जिनको हम कहते हैं, वो इनके चक्कर में आने से बच सकते हैं। पर प्रॉपर हमारा अभी कुछ पहुंच नहीं रहा है। आपको ताजुब होगा कि मैंने अंबेडकर की पहली जीवनी जो पढ़ी वो आरएसएस के प्रचारक ने लिखी थी, वो पढ़ी, और उसमें जो अंबेडकर थे वो तो कुछ और ही अंबेडकर थे, जो भगवा झंडे को राष्ट्रध्वज बनाना चाहते थे, संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में उनको कोई तकलीफ नहीं थी, जिन्होंने गांधी के हत्या की साजिश करने वाले सावरकर वगैरह को बाहर निकाला, आरएसएस पर से बैन हटाया, आरएसएस की शाखा में जाकर के उनकी बड़ी प्रशंसा की। ये सब चीजें उस जीवनी में लिखी हुई थी। लेकिन जब ओरिजिनल अंबेडकर को पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे भाई वो जो कहा गया वो कहाँ है, वो तो कहीं नहीं मिलता है। कहीं डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है कि मैं आरएसएस की शाखा में जाकर के वहां प्रेज किया मैंने, या उनसे मैं मिला हूं। उन्होंने निरंतर सावरकर से लगा करके सब लोगों के खिलाफ लिखा है। हिंदू राज के खिलाफ उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, वो आपदा होगी देश के लिए। तो मैंने कहा अंबेडकर ये लिख रहे हैं, लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी जो है वो पूरी तरीके से एक भगवा अंबेडकर हमको उन्होंने दिया। तो आज की हालात ये हैं कि हमारा लिटरेचर, हमारी बातें पहुंच नहीं रही है, उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा वाला जो लिटरेचर वो लोगों के बीच में जा रहा है। और अब आज शायद अंबेडकर की जो सर्वाधिक बिकने वाली किताब अगर कोई है तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान है, क्योंकि उसमें डॉक्टर अंबेडकर का मुस्लिम्स के खिलाफ कुछ कुछ कोटेशन है। तो वो किताब जैसे राष्ट्रीय किताब है, उसका बड़ा प्रचार है, और ऐसे दिखा रहे हैं कि अंबेडकर तो एकदम मुसलमानों के प्रति द्वेष से भरे हुए आदमी थे, जबकि ऐसा तो नहीं था। बाकी चीज़ों में तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आता है। तो ये मुझे लगता है कि हमें ठीक से लिटरेचर के जरिए भी चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरा तो कम से कम लिबरेशन हुआ इन सब चीज़ों को पढ़ने की वजह से। बाद में इतने सालों के विरोध और सारी चीज़ों के बाद, इस बीच में मैंने आरएसएस को चिढ़ाने का काम, उनसे लड़ने का, और वो किन चीज़ों से उनको तकलीफ होती है, चिढ़ते हैं, वो सब भी काम किया। अभी तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि अरे ये इसमें क्यों एनर्जी लगाया, लेकिन वो सब उस समय तो मुझे लगा कि यही ठीक है। तो मुझे लगा कि किन चीज़ों से हो सकते हैं। तो वो वीपी सिंह से बहुत नाराज़ रहते थे उस समय, तो मैंने उनका स्टूडेंट विंग ज्वाइन किया थोड़े दिनों तक, छात्र जनता दल। लेकिन वो जब नहीं चला तो फिर हमने एक विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ बनाया, अलग से छात्र संगठन, और उसके जरिए पूरा एबीवी वगैरह को कॉलेजेस से खदेड़ दिया हमने अपने जिले में से, और 6 सालों तक हमने अपने अध्यक्ष वगैरह बनाए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप स्टूडेंट लीडरशिप में लोगों को वहाँ, अगर हमारी कैंपस में थोड़ी मजबूत स्थिति बनी रहे, तो वहाँ पर बहुत सारे युवा जो बचपन से कुछ और सीख के आते हैं, कॉलेज में आने के बाद में अपना दिमाग बदल सकते हैं। लेकिन अभी तो हालात ये हैं कि आप जेएनयू जैसी जगह पे भी, मैं पिछले दिनों एक लेक्चर देने के लिए वहाँ गया, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि गेट से लगा करके और अंदर तक दोनों तरफ भगवा झंडियाँ लगी हुई। मुझे लगा कि कहीं नागपुर के आरएसएस दफ्तर में आ गए हैं या जेएनयू में आ गए हैं, ऐसा सिचुएशन बना दिया उन्होंने। तो अब कैंपस की पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन बावजूद इसके भी आप अगर देखेंगे तो चाहे अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन हो या वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन हो स्टूडेंट्स के, आज भी वही हैं जो इनको पूरी तरीके से चुनौती दे रहे हैं। जैसा भी दे पा रहे हैं, उसका जो भी नतीजा निकल रहा है, उसमें हो सकता है कि लोगों को मरना पड़ रहा है, रोहित वेमुला उसका केस है आपके यहाँ का, लेकिन बावजूद इसके भी चुनौती जो है वो वहाँ पर है। तो वो हमने चीज़ें की। हमने एक और चीज़ भी की, हमने एक दलित एक्शन ग्रुप बनाया, हमारे मुस्लिम मित्रों ने हैदर कर्रार इस्लामिक सेवक संघ बनाया। लेकिन ये बना करके कुछ कर पाते उससे पहले हमने उसका प्रचार बहुत कर दिया। तो हम आगे बढ़ते उससे पहले सरकारी एजेंसीज हमारे पीछे पड़ गई,
और फाइनली जो मौलाना थे उसको बेचारे को राजस्थान से भागना पड़ा। बाद में वो कोई मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप के साथ मिल गए। आजकल मैं सुनता हूँ कि वो बिहार में प्रशांत किशोर के साथ कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन उस काम के जरिए हमने ये सीखा कि दलितों को और मुस्लिम्स को साथ में बिठा करके क्या बात किया जा सकता है। तो हमने दलित मुस्लिम संवाद भी शुरू किया और हमारे यहाँ तो कम से कम हमारा दोस्ती जो है काफ़ी मजबूत हुई और अभी भी मजबूती से चल रही है। तो ये सब करते करते फिर लगा कि उनको जितना चिढ़ाना चाहिए उतना तो वो नहीं चिढ़ रहे हैं, तो क्या किया जाना चाहिए, कन्वर्जन किया जा सकता है। तो मैं कन्वर्जन का तरीका ढूंढा मैंने। तो क्योंकि दिमाग में एंटी मुस्लिम तो बहुत फीड था, तो मैं मुस्लिम बनने के बारे में सोचा नहीं। और आरएसएस में रहते हुए ये पढ़ा कि भाई जैन सिख बौद्ध तो हिंदू ही हैं, वो हिंदू धर्म का ही अंग है, तो उनके बारे में भी नहीं सोचा। तो फिर क्या सोच सकते हैं कि भाई ईसाई, तो ढूंढा ईसाई कहाँ होते हैं। तो एक ईसाई मिल गया मेरे को, वो पेंटिकोस्टल चर्च वाला बंदा था। तो जा करके मैंने उसको पूरा कहानी बताया कि मैं ऐसे आरएसएस में था और मेरा उनसे लड़ाई हो गया और मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो 2-2.5 घंटे सुनने के बाद वो पास्टर अंदर गया, अंदर जाके वो न्यू टेस्टामेंट लाया छोटे छोटे अक्षरों वाला, और मेरे को पकड़ा के कहा कि भाई देखो जीसस कहते हैं माफ कर दो, ठीक है ना, बदला लेने का काम नहीं, ये पढ़ो तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब ये। मैंने कहा ऐसे कैसे माफ कर दो, मेरी तो लड़ाई उनके साथ चल रही है, आप कह रहे हैं माफ कर दो। तो मैं जब वहां से निकला उसके बाद उनको लगा कि ये जरूर आरएसएस का एजेंट है और ऐसी फर्जी कहानी बता करके और हमारा चर्च में घुसना चाहता है। तो उसने मेरा पूरा पता निकाल करके, मैं घर पहुंचता उससे पहले मेरे घर वालों तक खबर पहुंचाई कि तुम्हारा बच्चा जो है वो ईसाई बनना चाहता है। तो और ज्यादा पंगा उधर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा आरएसएस में गए, अयोध्या गए, ये सब ठीक है, लेकिन ये और कौन सा नया चीज है कि भाई अभी और ईसाई और बनना है, तो ये सब नहीं चलेगा। लेकिन मेरे तो दिमाग में बैठा हुआ था कि कुछ कुछ बनना है। तो फिर किसी और को ढूंढा, कोई फिर वो एक 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च वाले मिले। बाद में तो पता चला कि वो भी कोई कम नहीं है, वो भी कट्टरपंथ में बड़े जोरदार हैं। लेकिन वो मिले तो उनके साथ कुछ दिनों रहा मैं, और बाद में उन्होंने कहा भाई हम आपको बैप्टाइज करेंगे। तो वो एक दिन बैप्टिज्म किया उन्होंने। तो बैप्टिज्म का तरीका तो आप सब जानते ही हैं, वो एक पानी के कुंड में उन्होंने मेरे को डाला, बाहर निकाला और एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के कहा कि बोर्न अगेन हो गया आपका नया जीवन हो गया। अरे मैंने कहा कैसे हो गया, हम तो ऐसे टैंक में रोज ही नहाते रहते हैं अपने गाँव में, मेरे तो गाँव में ओपन वेल है, उसका पानी तो टैंक में ही जाता है और रोज उसी में कूद के वापस निकलते हैं, तो रोज अगेन बोर्न अगेन नहीं होता, इधर कैसे हो गया बोर्न अगेन। तो फिर फाइनली मुझे लगा कि इन सब चीज़ों में कुछ दम नहीं है। और ये सारा जो धर्मों की यात्रा थी अलग अलग तरह की, उससे गुजरते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि धर्मों में खुद में ही एक जकड़न है, वो खुद में ही एक बंदिश है, एक बंधन है, और जो खुद ही बंधन है उसमें आप मुक्ति कैसे तलाश सकते हैं। तो फाइनली अभी तो मैं उस नतीजे पे पहुंच गया कि धर्मों से मुक्त होने में अगर कुछ है तो वो शायद मुक्ति हो सकती है। तो अभी ये सारा चीज़ों से मुक्त होकर के आजकल ह्यूमन राइट के कामकाज करता हूँ। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUCL को आप जानते होंगे, उसके साथ मेरा कामकाज है। इन सालों में राइट टू इन्फॉर्मेशन के मूवमेंट के साथ रहा मैं, MGNREGA लागू करने वाले लोगों के साथ रहा, राइट टू फूड वाले लोगों के, एजुकेशन वाले लोगों के साथ रहा। तो वो सारी चीज़ें करते हुए, सिविल सोसाइटी के साथ काम करते हुए, दलित और बहुजन मूवमेंट के साथ काम करते हुए ये समझ में आया कि मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ अगर हम काम कर सकें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो कम्युनल फोर्सेस के साथ लड़ाई जारी है, उस लड़ाई को हमने बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ा। आरएसएस के साथ पूरा जम करके उनका हर एक चीज़ जो वो लिखते हैं, हर एक चीज़ जो बोलते रहते हैं, मेरा पूरा नज़र उन पर रहता है, उनके लिटरेचर पर रहता है, उनकी मीटिंगों पर रहता है, और मैं निरंतर उस पर टिप्पणियाँ करते रहता हूँ, निरंतर लिखते रहता हूँ और कंटिन्यू उनको एक्सपोज करने का काम मैं करता हूँ। फिर मैं गाँवों में घूमता हूँ और गाँव में जो कबीर भजन होते हैं उन कबीर भजनों में जाकर के बैठता हूँ और वहाँ बैठ कर के आधा पौन घंटा बातचीत करता हूँ। तो मैं स्पेस नहीं छोड़ना चाहता उनके लिए। हमने वहाँ जो रामदेव पीर के मंदिर हैं दलितों की बस्तियों में, वहाँ पुस्तकालय अभियान शुरू कर रखा, देवालय पुस्तकालय अभियान, और वहाँ हम एक झोला रखते हैं, उसमें हम भारत का संविधान, कबीर की किताब और बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते हैं ताकि लोग पढ़ें, और मीटिंगों के जरिए बात करते रहते हैं। तो मेरा अपना एक
तरीका है कि मुझे मालूम है कि आरएसएस किस तरीके से काम करता है। तो वो उन्होंने जो काम किया वो तरीका जो है उसी तरीके की एक काट में मैंने भी अपने नए तरीके डेवलप किए कि जहां वो दिन में मीटिंग नहीं करने देते हैं वहां हम रात्रि रुकते हैं, तो रात्रि विश्राम लोगों के साथ करते हैं और वहां 10-20 लोगों के साथ बातचीत करेंगे। भजन सत्संग में जाकर के बैठ जाओ, आपको वो कैसे रोक सकते हैं। और वहां बस एक नई भाषा हमने डेवलप की, क्योंकि भजन सत्संग में जाकर के आप बैठोगे तो वो 5 भजन जब गाते हैं तो वो आपके लिए बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि उसमें पूरा अनसाइंटिफिक बातें भी वो साधु महात्मा लोग करते हैं, तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन फिर जब आपके हाथ में माइक है तब आपके पास आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं कि भाई ये जितने भी साधु संत हैं ये मरने के बाद का पैकेज आपको बता रहे हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, या जो कुछ भी मिलेगा, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। हम आपके लिए जीते जी क्या मिल सकता है उसकी बात करने के लिए आए हैं। और जीते जी जो मिल सकता है वो किताब जो है भारत का संविधान है। वो जो चीजें की है वो डॉक्टर अंबेडकर ने की है, ये अंबेडकर है, अंबेडकर का सोच ऐसे है। और धीरे धीरे वो स्पेस बन गया। अभी तो ये स्थिति हो गई है कि कई सारे जो बहुत ही अवैज्ञानिक बात करने वाले साधु संत वो भाग गए। उनको वो मेरा नाम देखते हैं उस कार्ड में, उनका अच्छा वो आ रहा है तो हमको नहीं आना भाई। तो हम धीरे धीरे एक वैज्ञानिक चेतना भी लोगों में जमा रहे हैं और वो स्पेस जिसको वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं उनको भी अपने हाथों में रख रहे हैं। और एक ऐसी भाषा भी डेवलप की हमने जो आम लोग समझ सकते हैं, गांव के लोग समझ सकते हैं, और जो थोड़ा रिलीजियस लोग भी हैं उनके बीच में भी हमारी बात जाती है। और उसकी वजह से मैं सोचता हूं कि राजस्थान जैसी जगह भी आज की तारीख में, जहां आरएसएस अपने पैदा होने के केवल 3 साल बाद पहुंच गया। 1928 में आरएसएस राजस्थान में था, 25 में वो नागपुर में बनता है और 3 साल बाद राजस्थान में कोटा में पहुंचता है वो। और बहुत छोटे छोटे गांवों में उनकी उपस्थिति है। लेकिन जब आप खुल करके लॉजिकल बात करना शुरू करते हैं, मैं सोचता हूं कि उनका इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपना जो झूठ है, नफरत है और जो प्रोपेगेंडा है उसको वो आपके आमने सामने नहीं लड़ सकते। जैसे उनका त्रिशूल दीक्षा चला तो हमने जहां जहां उनका त्रिशूल दीक्षा चला वहां हम गुलाब का फूल लेके पहुंच गए, तो त्रिशूल के बदले फूल अभियान। तो ऐसी कुछ नई चीजें करते हैं और उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी फूल बांट रहे हैं तो आपकी पुलिस क्या कर लेगी हमारा, हम तो फूल बांट रहे हैं भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ तरीके हम खोजते रहते हैं और पूरे देश भर में घूमते हुए मैं सीखते रहता हूं, और जो चीजें सीखते हैं फिर उन सब चीजों को हम करते रहते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने सुना सारी बातचीत को। और मैं गीता जी को फिर धन्यवाद देता हूं, हैदराबाद बुक ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तेलुगु में ये किताब का अनुवाद आपको उपलब्ध कराया। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि हम ऑडियंस से सवाल ले, मेरा भंवर से एक सवाल था। आपने एक पॉइंट मिस कर दिया। किताब में आप मेंशन करते हैं कि आपको फॉर्मल पॉलिटिक्स में एंटर करने का भी मौका मिला था, पर आपने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से था। अगर फ्यूचर में यही मौका कहीं और से मिले तो आपका उस पर क्या प्रक्रिया है? हाँ, वो रह गया। मुझे लगता है कि कुछ और बातों की तरफ चले गए। तो आरएसएस का एक बड़ा कैंपेन चला ये 2012-13 में कि उन्होंने बहुत सारे दलित लीडर्स को पकड़ा। आप अगर देखेंगे तो उसी समय में रामविलास पासवान उनके साथ गए, रामदास अठावले जो पैंथर वाले थे वो उधर गए, और उनके उसी अभियान में उनको लगा कि मैं क्योंकि उनका इतना विरोध में बोल रहा हूं, तो उनको लगा कि शायद इसको अपने साथ मिला देने से ये चुप हो जाएगा। तो वो जो एक तरह का कॉप्ट करने का जो उनका मिशन था, तो उन लोगों ने, मेरे से तो सीधे बात नहीं कर सकते हैं, तो मेरे जो साथ काम करते हैं उन लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि अरे देखो, जिंदगी भर ये थैला लटका के एक्टिविस्ट बन के घूमेगा, क्या फायदा होगा। अभी हमारा सरकार आने वाला है, हम टिकट दे देंगे, चुनाव लड़वा देंगे, मंत्री बन जाएगा, तुम सबका भी भला हो जाएगा। तो कार्यकर्ताओं को लगता है ना, कई बार जब आपके साथ काम करते करते थक जाते हैं लोग, तो उनको लगता है अच्छा अवसर तो है ना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो वो कुछ लोगों को कन्विंस कर दिया उन्होंने,
और मुझे लगा कि सीधे मना करना कार्यकर्ताओं को तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि अगर मैं कह दूंगा कि नहीं हमको नहीं जाना है, तो ये जिनको वो कन्विंस किए हैं ये लोग उनके साथ जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मैंने कहा हमने अब तक जितना भी काम किया लोगों से पूछ के काम किया, जनता से पूछ के काम किया, तो क्या हम इस प्रस्ताव को भी जनता के बीच में ले जाएं और जनता से पूछ लें कि भाई ये प्रस्ताव आया हुआ है, इसमें क्या करना है। तो हमने एक यात्रा डिजाइन की, कबीर फूले अंबेडकर चेतना यात्रा। 250 गांवों में गए हम 15 दिन तक कंटिन्यू, और लोगों के साथ जाकर के हमने कहा देखिए हमने कई सालों तक आपके मुद्दों को उठाया, बिना डरे बिना चिंता किए कि कौन हम पर नाराज है कौन खुश हैं, लेकिन अभी हमको एक प्रस्ताव आ गया है, और ये प्रस्ताव अगर हम स्वीकार करते हैं तो इसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद भी आपका कोई आपके पक्ष में बोलेंगे या आपके लिए हम लड़ेंगे। इसके बाद हम चुप रहेंगे, क्योंकि हमको तो पार्टी जो कहेगी वो करना पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है कि हम जाएं राजनीति में या ना जाएं? तो लोगों ने कहा नहीं 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 जाना है, आप तो ऐसे बोलते रहो जैसे बोल रहे हो, सड़क पे बोलते रहो। तो हमने ऐसे एक माहौल बनाया और फाइनली 15,000 लोग बुलाए जिला हेडक्वार्टर पे अंबेडकर जयंती पर, और उस दिन लोगों के सब जगहों से जो हमको सलाह मिली, उस सलाह के आधार पे 3 फैसले मैंने किए अपने लिए। एक तो ये था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बनूंगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, और किसी भी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि मैं अपने आप को सोशियो पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहता हूं, मैं अपने काम को ये कहता हूं कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं चुनाव की राजनीति से बिल्कुल अपने आप को दूर रखता हूं। और जो ये हमने 2012 में तय किया, अभी तो 12 साल हो गया, अभी भी मैं उस पर कायम हूं कि जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी अपनी लिमिटेशंस है, उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, और मैं सोचता हूं कि मैं उसके लिए फिट आदमी नहीं हूं, मैं अपने आप को मिसफिट पाता हूं उस पॉलिटिक्स के लिए, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। बाकी तो हम जनता की राजनीति है, हर मुद्दा जो उठा रहे हैं, हम विरोध की जो हर बात कह रहे हैं, हर जो चीज लिख रहे हैं, चाहे वो घर में बैठ के एक ट्वीट भी कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स है। जब आप कोई भी चीज करते हैं तो मैं पॉलिटिक्स में तो हूं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं हूं, न तो हूं और न ही भविष्य में जाना चाहता। थैंक यू सो मच। अब ऑडियंस में से किसी के भी कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। ओके, फर्स्ट श्रीनिवास। मेघवंश जी, आप जब आरएसएस में गए थे तो आपके पिताजी ने मना किए, और जो इंसिडेंट हुआ जिसमें आपको अपमान हुआ, उससे पहले भी आपके पिताजी आपको अलर्ट किया है। अब पिछले जनरेशन में ऐसा कॉन्शियसनेस कैसा आ गया, आपके बढ़ के कैसा सोच सके वो लोग? आप बोले थे कि अंबेडकर का प्रभाव उतना उतना नहीं है यहाँ राजस्थान में, लेकिन वो तो प्रीवियस जनरेशन में ऐसा कॉन्शियसनेस कैसा आ गया? मुझे लगता है कि क्योंकि मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ वो एक वीवर फैमिली है, जो कपड़ा बुनने वाली फैमिली, और वीविंग वाली जो कम्युनिटी है उसका महात्मा गांधी से बहुत उनका जुड़ाव था। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनका भी जुड़ाव गांधी से रहा, और मेरे पिताजी का भी कांग्रेस और गांधी से जुड़ाव रहा, क्योंकि उनको लगता था कि खादी, चरखा, कपड़ा, सूत, वो जो हमारे घर का सब कुछ चीजें हैं वो ही गांधी के वहाँ चलता रहता है। तो बाबा साहब का प्रभाव नहीं था, गांधी का प्रभाव था, लेकिन उनको ये समझ थी कि सारे धर्मों के लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए, और उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था, जो मेरे पिताजी के शब्द थे, क्योंकि उन्होंने वो वक्त देखा जब दलितों की पहले क्या पोजीशन थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको किस तरह के राइट्स मिले, और वो सब कुछ करवाने में वहां उस वक्त कांग्रेस थी। तो उनको लगता था कि कांग्रेस जो है वो माँ का पेट है दलितों के लिए, वहां सुरक्षित है हम, और उनका साफ तौर पे था कि ये बीजेपी जो है वो बनिया ब्राह्मण पार्टी है और ये हमारे लिए ठीक नहीं हो सकती है। तो वो उस सोच के साथ उनका वो समझ था।
तो अभी भी आप अगर देखेंगे तो आज जो बीजेपी में दलित गया है और वो लगभग 40% जा चुका है, वो सबके सब नई जनरेशन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और जो मिडिल क्लास बना है दलितों का, नौकरी पेशा लोग हैं, शहर में रहते हैं, वो आरएसएस बीजेपी में है। लेकिन जो गांव में लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, या एकदम गरीब लेबर और खेती करने वाले लोग हैं, उनका आज भी जो है वो एंटी बीजेपी स्टैंड है। अब मैं आपको काफी इम्प्रेस हुआ आप बोलने से कि नहीं, मैं धर्म और खुदा ये क्या दो अलग चीज है। एक चीज क्यों बोल रहा हूँ और उससे आपका आलोचना लेना चाह रहा हूँ। हम कम्युनिस्ट थे, खुदा नहीं है बोलते थे, साईं बाबा के मीटिंग में जाके पर्ची बांट के मार खाते थे। फिर उसके बाद हमारी उम्र में ही, अब तो 70 हूँ, जरा स्पिरिचुअल के तरफ चलेगा, खुदा के तरफ गया, धर्म के तरफ नहीं। तो ये मनुष्य में हो रहा सो चीज, जब हम कम्युनिस्ट थे, खुदा नहीं है बोले सो हमको आई थिंक इट हैज लॉट ऑफ नेगेटिव, राइट। आज हम जब ये एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम देख रहे हैं, मटेरियलिस्ट होते जा रहा है इंसान, ये पूरे जब देख रहे हैं सामाजिक सवाल, तो हम सोच रहे नहीं स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए, धर्म का धंधा छोड़िए, लेकिन खुदा एक मानुष के विश्वास रहने दो, अविश्वास रहने दो, खुदा एक है। Whether it's real or unreal is not my point. My point is that the figment of the creativity of human being. तो आप मुझे इस दोनों में बताइए ताकि हम अपना रास्ता ढूंढे। मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई रास्ता बताने की स्थिति में हूँ, लेकिन पहला तो ये है कि मैं कम्युनिस्ट कभी नहीं रहा, और मैंने कभी नहीं कहा कि खुदा है कि नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है वास्तव में, तो मैं उस पर कुछ बोलने से बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं तो कबीर सत्संग में जाता हूँ, मैं तो विपस्सना में भी जाता हूँ, और मेरा सभी तरह के लोगों के साथ अभी संबंध है। तो मेरा ये मानना है कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें किसी एक के साथ अभी नहीं अपने आप को पाता हूँ। लेकिन सही बात है कि आम लोगों को कोई न कोई धर्म की जरूरत होती है, या कुछ ऐसी ताकत की जरूरत होती है, ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जहां वो अपने आप को जोड़े रखते हैं। और क्योंकि हमारा जो काम है, मेरा काम ज़्यादातर देखिए, मैं कभी कभार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिलता हूँ, मेरा काम तो नरेगा मजदूर से लगा करके, हमाली करने वाले कंस्ट्रक्शन लेबर से लगा करके बहुत आम लोगों के साथ है, एकदम जिन्होंने शायद कहीं पढ़ा नहीं होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं जानता है, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल और ज़्यादा करुणा है उसमें, ज़्यादा दया है, और वो शायद अपने आप को धार्मिक भी नहीं कहता है। आप अगर उससे पूछेंगे तो उसके पास कोई परिभाषा भी नहीं है जहां वो कहे कि मैं हिंदू हूं, कि मैं फला हूं, मैं इस कल्ट में हूं, उसमें हूं, उससे कोई लेन देना नहीं है। लेकिन वो सहजता से अपना जीवन जीता रहता है, उसको किसी से नफरत नहीं करता है। उसको ये मानते हैं कि वो दया रखनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं लोगों में, और मेरा उस मान्यता से कोई विरोध नहीं है, मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूँ। मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा कि मैं इन सब जगहों से घूमते हुए, क्योंकि मैं पैदा हुआ जिस जगह और जहाँ और धर्मों को पढ़ने और लोगों से मिलने में, मैं उस नतीजे पे पहुंचा कि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है उसके साथ बहुत तकलीफ है। वो आप अगर उसको देखेंगे तो आपका स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से विश्वास हट जाता है। तो मैंने उस संदर्भ में कहा कि मेरा अभी किसी धर्म में उस तरीके से आस्था नहीं है, लेकिन लोगों की आस्था है, और लोगों की आस्था को लेकर के मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि भारत का संविधान सबको आस्था की इजाज़त देता है। तो सब तरह का सम्मान है, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड का तो सम्मान नहीं है, उसका तो विरोध करेंगे। पर हाँ, ये जरूर है कि मैं वो कभी नहीं करूँगा कि मैं कहीं जाकर के पर्ची बांट आऊँ साईं बाबा के यहाँ या फलाना बाबा के यहाँ। आजकल तो रोज बाबा नया नया पैदा होता है। अभी 9 साल का एक बाबा पैदा हो गया, एक छोटा सा लड़का, उसको बाबा बना दिया लोगों ने। तो अभी ये मूर्खता सब चलती रहती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी एक्सट्रीम पे हम ना रहें। ये भी नहीं कि खुदा नहीं है, और ये भी है कि खुदा है ही है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि क्या है। तो
जो बुद्ध ने कहा ना कि वो चुप रह गए, मेरा भी इसमें स्टैंड ऐसा ही है कि मैं भी इसमें चुप ही रह जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी शायद इस दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, उसको करने में ही हमको अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनको रोज़मर्रा की रोजी रोटी की दिक्कतें हैं, वो कल क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सवाल हैं। तो उन सवालों के साथ काम करते हुए उनका अपना जो फेथ है वो अपना करते रहें, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। So, first of all, thank you for giving this wonderful book and wonderful knowledge to us, which will empower more youth to get into the field. My first question to you, sir. We all know that youth is a backbone of the country because India have most of the youth. So, आज की यूथ देखे तो रोड पे श्री राम बोल के जय श्री राम बोल के घूम रहा है। हम कैसे यूथ को चेंज कर सकते हैं, कैसे इंटेलेक्चुअल बना सकते हैं, कैसे ऐसे इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है सर। देखिए, मुझे लगता है कि हम सेक्युलर जो लोग हैं वो इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अपना अनुभव है, 25 साल से मैं राजस्थान में काम कर रहा हूँ। हम पहले जब मीटिंग करते थे तो 500 लोग इकट्ठा होते थे, अभी हम 50 लोग हैं, और हम 50 लोग एक दूसरे को मतलब ऑलरेडी कन्विंस लोग ही एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं। इवन यहाँ भी हम जितने लोग हैं, हम एक ही विचार के लोग, हम कुछ अलग विचार, हम लाइक माइंडेड लोग हैं, और हम ही एक दूसरे को बात करते जा रहे हैं। तो हमारा ये टाइम भी खराब हो रहा है, हमारा एनर्जी भी खराब हो रहा है। मैं पिछले 5-7 साल से ऐसे लोगों के साथ बातचीत भी शुरू किया हमने जो हमसे बिल्कुल सहमत नहीं है, जो हमसे डिसएग्री कर रहे हैं। जैसे मैं तो रिजर्वेशन के पक्ष में हूं, तो मैं एंटी रिजर्वेशन जो लोग हैं उनके साथ बात करने के लिए जाना चाहता हूं, क्योंकि जो पक्ष में है उसको मैं क्या बताने वाला हूं, मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं। और आजकल तो एआई का ज़माना है, हमसे ज़्यादा लोग दूसरा हमसे जानता है। तो क्या हम अंगेज करें उन लोगों के साथ जो हमसे सहमत नहीं है। दूसरा, नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। नई समस्याओं के पुराने समाधान नहीं हो सकते हैं। आज बैठ के मार्क्स की बात ले आए, बुद्ध की बात ले आए, उनकी बात ले आए जो 100 साल पहले हो गए, वो नहीं चलेगा। अभी नया जो तरीका है, यूथ को कुछ न कुछ चाहिए, आप उसको कुछ ऐसा दें जो, क्योंकि उसको कुछ करके दिखाना है। उसको आप कहोगे नहीं इधर बैठ करके चिंतन करना है, उसको चिंतन विंतन नहीं करना, उसको सड़क पे जा करके नारा लगाना है, अपना तस्वीर बनाना है, उसका रील बनाना है, उसको अपलोड करना है, लाइक लेना है। तो जो नया तरीका है यूथ का, उन तरीकों में हमें जाना पड़ेगा। और शायद मुझे तो लगता है कि यूथ से ही हमको जाके पूछना पड़ेगा कि आपके साथ हम क्या करें कि हम और आप जुड़ सकें। दरअसल यूथ को भी ज्ञान नहीं चाहिए ना। मैं कई सारे हॉस्टल में जाता हूं, वहां दरवाजे पे वो लोग लिखे हुए हैं, कृपया फालतू ज्ञान नहीं दें, यहां हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्ञान है। अभी क्या करेंगे बताइए आप, वो तो कमरे में नहीं घुसने दे रहा है, गेट पे लिखा हुआ उसने। तो यूथ के साथ शायद नए तरीके से आप हम मिल करके शायद कर सकते हैं, तरीका खोज सकते हैं। अभी कोई रेडीमेड तरीका नहीं है, हर दिन नया चुनौती है, और हर दिन की चुनौती के साथ हमको नया तरीका खोजना पड़ेगा। माय सेकंड क्वेश्चन इज, आपकी ये आप कर रहे हैं ना, ये फाइट कर रहे हैं ना, सो आपके एक सिचुएशन पर भी आपकी लाइफ भी डेंजर में लगा है ना, एक ना एक सिचुएशन पर डेंजर आपके लाइफ हुआ ना। हाँ, वो मुझे लगता है कि वो सब तो होता रहता है, क्योंकि आप जब जो काम कर रहे हैं उसका नतीजा आपको मालूम है। तो मुझ पे इतने सारे केसेस हुए हैं, कभी कभी पुलिस पीछे और चोर पुलिस जैसा खेल चलता रहता है, पीछे वो भागते हैं, हम आगे आगे भागते रहते हैं, वो भी चलता है। कभी कभी पकड़ लेते हैं वो लोग, तो ऐसा भी हुआ है। वो देखिए, वो होगा, ये सोचते हुए कि ये हो सकता है आपके साथ, आपको ये करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सिक्योरिटी के साथ आप क्या करेंगे, तो आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो लोग, और जब आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो आपको पता नहीं है ना कि आरएसएस के लोग हैं कि नहीं है। मुझे यहाँ तो मालूम है कि लामकान में जो लोग आए हैं वो कौन लोग हैं,
लेकिन जब मैं अपने इलाके में चौराहे पर खड़े होकर के ऐसे माइक पकड़ के बात करता हूं, मुझे नहीं मालूम कि जिनको पर्चा हमने दिया है और जो लोग हैं अभी चिल्लाएंगे वहां पर, तो लोग चिल्लाते हैं, मंच पे चढ़ जाते हैं, माइक छीन लेते हैं, वो सब होता है। और मुझे लगता है कि उन्हीं सब चीज़ों को करते हुए अपने आप को भी मजबूती मिलती है कि हाँ ये हो सकता है। लेकिन ये भी होता है कि ऐसा भी हुआ जब एक बार कुछ 100 लोगों ने मेरे खिलाफ जाकर के ज्ञापन दिया कि ये फर्जी आदमी है, ब्लैकमेल करता है, ये हमारे धर्म का को ये पहुंचाता है, हमारी भावनाएं आहत करता है। तो 12 अप्रैल को 100 लोगों ने ज्ञापन दिया। 13 अप्रैल को उसी कलेक्ट्रेट में 5000 लोगों ने आकर के ज्ञापन दिया कि नहीं हमारे लिए लड़ने वाला आदमी है, आप हाथ भी उठाएंगे तो हम देखेंगे उसको। और कलेक्टर ने कहा, जो मेरे पक्ष में डेलीगेशन गया उसको उन्होंने कहा अरे इतने लोगों को आने की क्या जरूरत थी, हमने तो कल ही उसको फाड़ के नीचे फेंक दिया जो ज्ञापन दे करके गए। तो बात यह है कि जनता का अगर आपके साथ समर्थन रहेगा तो आप पर हाथ नहीं डाला जा सकता है। तो मेरी सुरक्षा कोई प्रशासन नहीं कर रहा है, मुझे मालूम है कि मेरी सुरक्षा हमारे लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो कभी भी किसी भी आयोजन में जब जाते हैं, तो आप अगर देखेंगे कभी मेरे कार्यक्रमों में भी, तो कभी कभी मुझे घर से 500 युवा मोटरसाइकिल लेके आते हैं अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जगह पर ले जाने के लिए। पुलिस की क्या जरूरत है जब जनता आपके साथ है। बात यह है कि जनता का समर्थन हमको जुटाना पड़ेगा, और वो नहीं होगा तो कोई हमारी सुरक्षा नहीं कर सकता है। बाकी इस डर से तो हमको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका सबसे बड़ा काम ये है, वो डराना चाहते हैं। देखिए उनका सक्सेस क्या है, उन्होंने 86% लोगों को इस देश में 14% माइनॉरिटी से डरा दिया है, एक्चुअल में डरा दिया कि ये तुम्हारा खा जाएंगे, ये तुम्हारा ये छीन लेंगे। तो ये जो डर पैदा किया, उस डर से अगर आप लोगों को निकाल सकें तो सबसे पहले तो खुद को निकलना है और फिर लोगों को निकालना है। जिस दिन ये डर खत्म हो गया, आप मान के चलिए कि उनका पूरा आइडियोलॉजी खत्म हो गया, तो उससे तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। Thank you, sir. That you've been going around and I mean your discourses, everything is open. But the same case in Karnataka, Govind Pansare and so many others were shot dead, Gauri Lankeshman and all. So don't you think you have a danger from them? मुझे लगता है कि चाहे गोविंद पानसरे हों, चाहे कलबुर्गी हों, चाहे दाभोलकर हों, चाहे गौरी लंकेश हों, और भी बहुत सारे लोग, उनके साथ जो हुआ ऐसा हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि इसका कोई कुछ पता नहीं है कि क्या किया जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ जिस तरह का एक तरह का अग्रेशन आ रहा है, जिस तरह के युवाओं को वो पकड़ करके और तैयार कर रहे हैं, वो सोच नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि उनके भगवान का, उनके धर्म का और उनके देश का आप नुकसान कर रहे हैं, आप कहीं और से पैसा लेकर के कहीं और से कुछ करते हुए कर रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है समुदाय में। लेकिन मुझे कभी अभी तक नहीं लगा ऐसा कि ऐसा कभी हो सकता है। हाँ, कभी कभी वो पकड़ लेते हैं लोगों के बीच में, तो वो भी एक बार लगभग मॉब लिंचिंग जैसा था। लेकिन मुझे लगा कि क्या करेंगे उसके बाद, या तो हम चुप करके घर में बैठ जाएंगे, तो वो जो चुप करके घर में बैठ जाना है वो भी मरने जैसा ही है। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी बात को कहते रहें और उसका जो भी नतीजा होगा। पर मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ है। शायद राजस्थान में वो परिस्थिति नहीं है, या शायद ऐसा भी है कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ बहुत बड़ा एक समर्थन मेरे साथ है, वो भी एक कारण शायद होगा। तो उस वजह से, पर मैं ये भी सही है कि मैं अक्सर अकेले सफ़र करता हूँ। पूनम जी यहाँ बैठी हैं, वो जानती हैं, हम पिछली बार कोणार्क में मिले थे। मैं देश भर में भी ऐसे ही घूमता हूँ, मैं अपने इलाके में भी ऐसे ही घूमता हूँ, बसों में, ट्रक में, ऑटो में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, तो वो भी चलता है और लोग मिलते भी हैं। ये भी बात सही है कि ऐसा भी होता है कि जब एक समूह मिल जाता है आपको ट्रेन में और आपको पहचान लेते हैं लोग और आप पे चिल्लाते हैं, आपसे बहस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक तो चल रहा है, फिर जब होगा तो देखा जाएगा कि क्या होता है।
Yes, I just wanted to say, since we are running short of time, I would like everyone to keep your questions short so that we can accommodate more questions. यहाँ पर उपस्थित बंवर जी और सभी बुद्धिजनों को मेरा नमस्कार। बंवर जी, मैं आपको शायद पिछले 6 से 8 साल से सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, उनको फॉलो करती हूँ और इन लास्ट 6-8 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत प्रेरणा ली है। और मुझे जो एक उनका इंसिडेंट याद है, उन्होंने कविता लिखी थी रोहित वेमुला के ऊपर, शायद वही मुझे बहुत उनका टच किया था। तब से मैंने उनको लगातार फॉलो करना शुरू किया। मैं बहुत जानती थी, लेकिन आज आपका वक्तव्य सुनकर मुझे बहुत सारी ऐसी बातें मालूम चली जो मुझे नहीं मालूम था। एंड जब आप पूरा अपना एक्सपीरियंस और बयान कर रहे थे तो मुझे पूरा एक पिक्चराइजेशन की तरह पूरा आपका लाइफ बहुत संक्षिप्त में आया। रियली बहुत ही प्रेरणादायी है। और जब किसी ने भी यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे क्या या ना करेंगे, तो ये सब जानने के बाद मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, एक स्वार्थवश मेरा भी वही होता है कि सर मत जाइएगा, पर मैं ये भी जानती हूँ पॉलिटिक्स एवरीवेयर है। वी कैन नॉट बी अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। आप, जो मैं जानती हूँ, आप एक पीयर प्रेशर का काम करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, और ये ग्रुप है, हम आप इस बात के लिए आपका ऋणी महसूस करते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि बंवर जी ने अपनी बेटी का शादी किया था, तो सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो शादी जिस तरीके से आपने की है, मेरे भी मन में है कि जब मैं अपने बेटे की शादी करूँ तो उस तरीके से ही करूँ, और आपसे उसके बारे में सो दैट मैं अपनी जगह पे मैं जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आप लोगों से सीखते हैं, थोड़ा तो हम अपने जीवन में कुछ बदलाव उस तरीके से ला सकते हैं। आप साइंटिफिक तरीके से उस साइंटिफिक सोच के साथ जीवन को जीने के लिए सबको प्रेरणा देते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा क्वेश्चन बस मैं करूँगी कि क्योंकि हम जो हमारे जैसे लोग जो एक्टिव पॉलिटिक्स, एक्टिविज्म में नहीं आ सकते हैं, तो क्या बैकग्राउंड में है, क्या आप लोगों के साथ, क्या हम लोग कुछ आपको योगदान दे सकते हैं आप जैसे लोगों के साथ में, उस पर कुछ अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। शुक्रिया पूनम जी। मुझे लगता है कि सारे ही लोग सड़क पे उतरेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे फ्रंट हैं पूछने के बाद जहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। आप अगर देखेंगे कि आरएसएस के इतने सारे एक्सटेंशन काउंटर्स कि उनको, एक आदमी को जो कुछ नहीं करता है उसको उन्होंने एक काम दे रखा है कि हर रोज सुबह उठ करके तुलसी के पत्ते लेकर के और हॉस्पिटल में जा करके हर मरीज के वहां पे जय श्री राम करके एक तुलसी का पत्ता रखना है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है ना। और वो ये भी कहता रहता है कि कोई जरूरत हो, कुछ ब्लड की जरूरत हो, ऐसे किसी को गाय पकड़ा दिया, ऐसे किसी को कुछ एडवोकेट पकड़ा दिए, किसी को कुछ पकड़ा दिया। वो जितने फ्रंट पे काम कर रहे हैं, हम उतने फ्रंट पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत है जो बैकग्राउंड में काम करें, जो इंटेलेक्चुअल काम करें, जो एक्टिविस्ट के नाते काम करें, जो एडवोकेसी कर सकें। कई प्रकार के काम हैं, तो जरूर आपके साथ डिटेल चर्चा करेंगे, जहां हम खास तौर पे राजस्थान में बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल पीछे रहते हैं, लेकिन वहां रहते हुए वो मदद करते हैं, और इसी वजह से बड़े मोबिलाइजेशन भी हमारे हो सकते हैं, जहां हम 10, 20, 25 हज़ार लोगों को इकट्ठा करते हैं। क्योंकि अंत में ये लोग ताकत से डरते हैं, वो लगता है उनको कि इतना जनसमूह आज भी इनके साथ हैं, तब फिर उनको लगता है कि नहीं, अभी भी इस विचार वाले लोग जिंदा हैं, आइडिया ऑफ इंडिया वाले लोग जिंदा हैं, डेमोक्रेसी की बात करने वाले और संविधान की बात करने वाले जिंदा हैं। तो मुझे लगता है कि आपके साथ डिटेल में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जस्ट वन क्वेश्चन सर, आप बोल रहे इलेक्शन पॉलिटिक्स को आप सूट नहीं होते बोल के, आप आरएसएस बीजेपी संघ परिवार के खिलाफ लड़ना अब सब लोगों का ये है,
फिर ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में विदाउट एनी इलेक्शन पॉलिटिक्स whom you want to support, किससे जोड़ा होने के बाद सोच रहे आप? अगर आपके राजस्थान में इलेक्शन हुए तो बीजेपी के आरएसएस के खिलाफ लड़ना बोले तो किसके खिलाफ, लोगों को क्या बोलते हैं आप? तो मैंने ये कहा कि मैं राजनीति के लिए मिसफिट हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि राजनीति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो मेरा एक और काम जिसके बारे में मैं नहीं बताया यहाँ आपको, मैं सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज के कैडर के साथ निरंतर ट्रेनिंग के प्रोग्रामों में एंगेज करता हूँ अपने आप को, कांग्रेस से लगा करके कम्युनिस्ट पार्टी की पार्टी क्लास तक। और राजस्थान में भी इलेक्शन थे तो हमने ट्राइबल एरिया में भारत आदिवासी पार्टी को सपोर्ट किया, हमने सीपीएम को सपोर्ट किया, हमने वहाँ के एक रीजनल पार्टी को सपोर्ट किया और कांग्रेस को सपोर्ट किया। हमने कहा इंडिया ब्लॉक को हम सपोर्ट करेंगे और ये हमारा एकदम पक्का वो है। और मैं उस तरह का क्या कहना चाहिए, शुद्धतावादी व्यक्ति नहीं हूँ कि नहीं मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो पॉलिटिकल पार्टी के उसमें नहीं जाऊँगा। मैं पीछे क्या है, हाथ का चिन्ह है कि साइकिल है कि लालटेन है कि फूल पत्ता क्या है, उससे कोई फर्क नहीं है। मैं इन सारे मंचों पर जाकर के और खुल कर के हमारी डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और हमारे आइडिया ऑफ इंडिया के पक्ष में बात करता हूं। और मैंने इलेक्शन में कैंडिडेट्स का प्रचार किया है खुल करके। तो मेरा कहना यह है कि मैं वहां तक एंगेज करता हूं। मैं अभी कांग्रेस के कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्रामों के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, एसएफआई के साथ, आदिवासी पार्टी के साथ कंटिन्यू हम कर रहे हैं। केवल बीजेपी को छोड़ करके बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, उनके काडर के साथ काम करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं कंटिन्यू काम करता हूं। बस मेरा ये मानना है कि मैं स्वयं चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि होता यह है कि जब आपके साथ 10-15 हज़ार लोग आ जाते हैं, कुछ लोग आपको थोड़ा ऊपर ऊपर उठाते हैं, फिर लगता है कि हम कुछ और हो गए हैं, समथिंग स्पेशल। और उसके बाद जब आप उसमें घुस जाते हैं तो आप मूल काम को भूल जाते हैं। हमारा काम है लोगों को पॉलिटिसाइज करना, राजनीतिक शिक्षण देना, और वो हम करना भूल गए। मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी की ताकत क्या है कि उसके पास आरएसएस जैसे लोग हैं जो पीछे रह करके बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो थोड़ा भी कुछ हो जाता है वो सीधा कूद जाता है और वो अपने आप को खत्म कर देता है। तो मेरा काफी सोच विचार के बाद ये निर्णय है कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन काम पॉलिटिकल करना है। इसलिए मैं अपने आप को सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी कहता हूँ। शुक्रिया। आपकी ये स्पीच जो थी, आपका सफ़र बहुत मुश्किल रहा और बहुत हिम्मत का रहा, मैं समझती हूँ, क्योंकि तो आप अकेले अपना सोचे। मगर मेरा ये पूछना है कि अपन अपने देश में ये देख रहे हैं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो खुद ही एक तरफ तो बीजेपी आप पता ये है कम्युनल एजेंडा इधर है, मगर दूसरे साइड पे भी पूरे माइनॉरिटीज़ जो है उन लोगों में भी एक डिवाइसिवनेस है। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर बहुत स्पीचेस को आई हूँ और किसी की बुक है मुस्लिम, किसी की है दलित, किसी की है कुछ और इंग्लिश में या तेलुगु में, या इतने अपने में डिविजन्स है कि ये जो अपना इंडियन सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है अपने में ये भी एक चैलेंज है कि पूरे अपने जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है वो भी अपने को ट्रांसेंड करना है कि अगर अपने को ये कम्युनल एजेंडा निकालना है। अब आपको बताती हूँ, मैं यहाँ नज़दीक रहती हूँ और मैं बाहर पढ़ी मगर वापस आई, और हमारे पास बस्ती में एक घर पे एक पीला सैफरन झंडा है, दूसरे घर पे वो तिरंगी है हाथ के साथ। मैं यूं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ हमारा तिरंगी कहाँ है? Where is India? Where is India? Where is democracy? तो अब ये इतने अपन लोग खुद ही एक घर में एक रंग, दूसरे घर में दूसरा रंग। जब मैं छोटी थी, यहाँ से जाने से पहले हम लोग सब घरों के नामा जानते थे।
हमारे पड़ोसियाँ। अब मैं एक दिन एक गली में गई जिधर हम लोग सबको पहचानते थे, तो किसी से मैं पूछी ये फलां ये मुस्लिम कोई डॉक्टर ये है, उनका नाम बोली और बहुत मशहूर थे उन्होंने हैदराबाद में। एकदम से इन्होंने कहा अरे वो मुस्लिम डॉक्टर। आई मीन कोई नाम भी नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। हाँ, आजकल लोग कहते कि देखिए मेरा नाम फातिमा है और लोग कहेंगे पहले से स्टेरियोटाइप, यू नो। तो अपने खुद ही जो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर अपन कहते, वी आर विक्टिम्स ऑफ आवर ओन डेमोक्रेसी एंड सो ऑन। तो अब आप है सो जो डेमोक्रेसी कह रहे हैं, और वो डेमोक्रेसी मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू क्रॉस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यू नो, कम्युनलिज्म ऐसी चीज़ है कि अपन इंटरनलाइज कर लिए, अपने को मालूम भी नहीं कि अपन लोग अपने आप को डिफाइन आइडेंटिटी कर रहे। अरे हम तेलुगु है, उन्हों उर्दू है, उन्हों कुछ और है, उन्हों दाढ़ी वाले हैं। यू नो, इट्स डिसग्रेसफुल। आई मीन आपसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तो आप लिख रहे हैं कि टाइम आ गया है कि एक झंडा रहना, अपना नेशनल झंडा एक है जिसके लिए अपन सब लड़े। और इधर जो है अब अपन कम्युनिटी, कास्ट, कम्युनिज्म, लेफ्टिज्म, मुस्लिम, हिंदू, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। आप समझ रहे? तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वेयर इज डेमोक्रेसी? बिकॉज ये सब वर्बली अपन सेक्युलर डेमोक्रेसी। ओह, ऑलराइट, दैट्स इट। बट थैंक यू सो मच एंड गुड लक। मुझे लगता है कि ये सवाल हम सब पे ही है, और जो मैंने कहा कि कुछ पिछले 5-7 साल से हमने ये जो शुरुआत की कि जो हमसे अलहदा हैं, जो हम जैसे नहीं हैं, हम जैसे कपड़े नहीं पहनते, हम जैसा खाना नहीं खाते हैं, हम जैसी भाषा नहीं बोलते हैं, या हम जैसा विचार नहीं है जिनका, अभी उनके साथ एंगेज कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। समस्या ये नहीं है कि झंडे अलग अलग हैं, समस्या ये नहीं है कि भाषा अलग अलग है, ये हमारी डाइवर्सिटी है, इसी को हम एंजॉय कर रहे हैं देश में। समस्या ये है कि ये सब अब पूरी तरीके से विभाजित हो गया है, जहां हमारा कोई किसी के साथ बातचीत नहीं है। पहले जब हम पढ़ते थे, तो मैं जब 6 क्लास में पढ़ने जहां मैं रहता हूं, वहां तो आज भी अजान की आवाज़ मेरे घर तक नहीं पहुंचती है, लेकिन मैं जब 6 क्लास में पढ़ने गया तो वहां मुस्लिम बच्चे भी थे। आगे पढ़ने गए तो हमको ईसाई बच्चे भी मिले। आज हालत ये है कि हिंदू बच्चा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहा है आरएसएस के, मुस्लिम बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, कोई और बच्चा किसी रिलीजियस दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। इनका आपस में मिलने की जगह ही नहीं है। तो जब आपका कहीं कोई मिलन नहीं है, तो फिर आप कैसे, आपका जो भारत जो था, आइडिया था इंडिया का, वो नहीं बचा है, और इसीलिए शायद हमको उस पर काम करने की जरूरत महसूस हो रही है। तो अभी अपने अपने झंडों को लेकर के जाने का समय नहीं है। मैं तो अम्बेडकराइट मूवमेंट में हूं अभी, बावजूद इसके भी मैं ये कहता हूं कि नीला झंडा से ज्यादा जरूरी इस समय हमारे लिए तिरंगा झंडा है और भारत का संविधान है। तो एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, बस ये 2 पर्याप्त है। आज की लड़ाई इसी से लड़ी जाएगी और यही हमको एक करेगा, बाकी कोई एक नहीं कर सकता है। तो मैं आपके विचार से बिल्कुल सहमत हूं। Good evening, sir. Recently, government has allowed government employees to join RSS. तो इसका practically what could be the effect? जब government employees RSS के members खुला बन सकते, they can become RSS members. That means ये लोग कुछ उनके एक्टिविटीज भी ऑफिस के अंदर भी कर सकते। क्या हो सकता है? व्हाट विल यू, आप क्या सोच सकते हैं आगे फ्यूचर कैसा रहेगा बिकॉज ऑफ दिस रूल? एक चीज़ है। दूसरा क्या है, एक डाउट है, आरएसएस बीजेपी दे आर कंसिडर्ड द पार्टी प्रमोटेड बाय
the upper caste, let us say. Now, Narendra Modi is not a person from upper caste. But they both are able to sail together so well. How is this possible? How is this? आपके सोच में ये दोनों ऐसा मिलके कहाँ तक जा सकते हैं? कुछ दिस इज जस्ट आपके जो तजुर्बा है इससे आप कुछ बोल सकते हैं, क्या हो सकता है इन लोगों का, कैसा हो रहा है ये मिलन और ये कहाँ तक जा सकता है? तो मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। पहला तो ये है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले तक उनका जो कम्युनिटी था वो अपर कास्ट था। उन्होंने गुजरात से दिल्ली शिफ्ट होने से ठीक पहले अपनी कम्युनिटी को ओबीसी में डाला, ओबीसी लिस्ट में डाला। तो वो जो उनका कम्युनिटी जो था वो ओपन कैटेगरी में था, उसको ओबीसी में करके ओबीसी की लीडरशिप लिया और फिर वो पूरी कहानियां भी बनाई कि वो कितना गरीब परिवार में थे और कैसे चाय बेचा और ये सब चीज़ें, ताकि वो ये कह सकें कि वो बिल्कुल पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और ये पूरा जो आरएसएस मतलब पूरा बीजेपी का जो कैरेक्टर था, वो जो एक अपर कास्ट इलीट और जो शहर की पार्टी के रूप में, उसके कैरेक्टर को बदल करके उन्होंने बनाया कि वो आम लोगों की पार्टी है और ख़ास तौर पे ओबीसी लोगों का पार्टी है। और अभी आप देखेंगे कि जो छोटी संख्या का ओबीसी है, कम नंबर वाला, वो ओबीसी कम्युनिटियों को पूरी तरीके से उन्होंने 100% अपने साथ ले लिया। और अभी की पूरी हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कंधों पर अगर कोई लेके चल रहा है तो वो उस तरह का ओबीसी लेके चल रहा है, जिनको उन्होंने ये बता दिया है कि तुम ओबीसी तो छोटे छोटे समूह रहेगा, हिंदू की उसमें अम्ब्रेला में आप बड़ा व्यक्ति बनेगा। तो ओबीसी को पूरी तरीके से हिंदुत्व के साथ जोड़ दिया उन्होंने। और ख़ास तौर पे मेरा राजस्थान का अनुभव तो ये है कि वहाँ तो ओबीसी फुली बीजेपी के साथ घुस गया है। बीजेपी और ओबीसी की पहचान कुछ अलग अलग नहीं बची है, वो एक ही जैसा हो गया है, इधर वो उधर वो। तो वो उन्होंने पूरा प्लानिंग के साथ किया है। तो प्रधानमंत्री को ओबीसी बनाना, फिर ओबीसी को अपने साथ जोड़ना। तो इसीलिए अब ये जो पूरा कास्ट सेंसस वाला इश्यू चल रहा है, उनको मालूम है कि कास्ट सेंसस जो है वो ओबीसी वाला मामला है। तो इसलिए आरएसएस ने काफ़ी सोचने विचारने के बाद अभी 10 दिन पहले ये कह दिया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो अभी ओबीसी जब तक उनके साथ रहेगा तब तक हिंदुत्व पॉलिटिक्स भारत में बना रहेगा। जिस दिन वो बाहर आया उस दिन आप मान के चलिए कि उनका पॉलिटिक्स नहीं चलने वाला है। तो इस पर मुझे लगता है कि ओबीसी पर काम करने की ज़रूरत सेकुलर पॉलिटिक्स के लोगों को है। ये एक चीज़ है। पहला सवाल जो था आपका आरएसएस गवर्नमेंट वाला, मुझे लगता है कि ये केवल कागजी खाना पूर्ति है। पहले से ही सरकारी कर्मचारी खुल करके आरएसएस में जा रहे आ रहे हैं। और अभी तो हाल ये हो गया कि देखिए उनका जो संकल्प करके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली में चलता है, जो आईएएस की कोचिंग करवाता है, तो नीचे के लेवल से ऊपर तक जो लोग बन रहे हैं आईएएस तक, वो सब उनके यहाँ से पढ़ लिख करके और फिर वहाँ पे जा रहे हैं। तो वो तो काम वैसे भी उनका ही कर रहे हैं। और ये जो कागज में उनका हटा दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आरएसएस की जाकर के कोई मेंबरशिप तो लेनी नहीं होती है, वहाँ आरएसएस कोई रसीद तो काटता नहीं है। तो वो तो पहले से ही उनका काडर है, पहले से ही काम करते रहे हैं। अब इतना ज़रूर है कि आप अगर कोई विरोध करे कि आप अपने वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, अपने ऑफिस में क्यों कर रहे हैं, या ऑफिशियल टाइम पे क्यों जा रहे हैं, या आपको वहाँ के बजाय वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, या आप पेंट पहन करके नज़र नहीं आना चाहिए, टोपी में नज़र नहीं आना चाहिए, शायद अब वो कानूनी तौर पर अब वो लीगलाइज हो गया, क्योंकि अब कोई बंदिश नहीं है। लेकिन वो पहले से ही उसके अंदर हैं, हमको ये भी ध्यान रखना है। केवल अब उनको छूट मिल गया है कि वो खुल करके अब अपने आप को दिखा सकते हैं। बाकी तो वो
नीचे से लगा करके ऊपर तक फुल भरा हुआ है, आरएसएस भरा हुआ है उसके अंदर। मैं आपसे एक पूछना चाह रही हूँ, आप मतलब बहुत शहरों घूमे हैं, जैसे हैदराबाद आए हैं, दिल्ली गए हैं, बहुत सारी मीटिंग्स में गए हैं, हमारे जैसे लोग से भी बहुत मिल चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जैसे आपने कहा प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड, सब हम जैसे लोग जो पहले से यही व्यू पॉइंट के हैं ऐसे लोग हैं, और ज़्यादातर यहाँ पर लोग मतलब यंग पीपल भी हैं, मगर ज़्यादा जो एज है ऐसे लोग हैं। आपका क्या राय है कि जो ऐसे लोग हैं क्या करें? आपके राय में फ्रैंकली बताइए आप, जो आप जैसे हम काम नहीं कर सकते हैं, आप जैसे हम घूम नहीं सकते हैं, एक्टिविटीज़ नहीं ले सकते हैं, क्या काम करना चाहिए ऐसे लोगों को? आपकी फ्रैंकली बताइएगा। नहीं, मुझे लगता है कि ये सब जगहों का हाल हो गया है कि इस तरह की मीटिंग्स में 50 से ऊपर के लोग आते हैं। अभी मैं 50 का अगले साल हो जाऊंगा, तो मैं भी फिर उसी क्लब में शामिल हो जाऊंगा। लेकिन देखिए, अब वो आते हैं, ये तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यूथ के बीच जो जाने की ज़रूरत है, वो कोई तरीका अभी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हम सब जगह घूमते हुए भी ये महसूस हो रहा है कि युवाओं के साथ बात करने का जो लैंग्वेज की ज़रूरत है, या तरीके की ज़रूरत है, या उनको जो अट्रैक्ट करने का जो कुछ होना चाहिए, शायद वो अभी हम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि इस तरह की मीटिंग्स में हमारा यूथ नहीं आता है। मेरे साथ जो ज़्यादातर यूथ जुड़ा हुआ है वो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, या फेसबुक पे है, वहाँ वो एंगेज करता है। आप वहाँ कुछ ऑनलाइन करिए, वहाँ कुछ डालिए, वहाँ तो जम करके वो करेगा। लेकिन यहाँ इस तरह की मीटिंगों में वो नहीं आएगा। शायद ये मीटिंगों के प्रति लोगों का, नई जनरेशन का वो बदल गया है। अभी समय भी नहीं है, जिस तरह का उनका कैरियर के प्रेशर हैं, उनकी ज़िंदगी के प्रेशर हैं, उसमें इतना 2-4 घंटे बैठ करके बात करने का उनके पास समय नहीं है। उनका तो अटेंशन इतना कम हो गया है कि वो 35 सेकेंड वाला अटेंशन पर हैं, और हम अगर 3 घंटे यहाँ बुला करके उनसे बात करना चाहते हैं तो वो शायद बात नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि जितने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आप हम सब जो लोग हैं, क्या हम नए माध्यमों के जरिए युवाओं के बीच में पहुंचे, वो तरीके अगर हम अपने रिच एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकें, तो ये एक तो नॉलेज का भी ट्रांसफ़र होगा और लोगों के साथ एंगेज भी कर पाएंगे। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो तरीके खोजे जा सकते हैं वो खोजने चाहिए। बाकी तो जो लोग काम कर रहे हैं वो काम बहुत ज़रूरी काम है। अगर कोई लिटरेरी काम कर रहा है, कोई पब्लिकेशन के काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है, कोई ह्यूमन राइट का काम कर रहा है, इस काम को भी करने की ज़रूरत है। और ये काम देखिए, वो जो 35 सेकेंड वाला जो सोच है वो नहीं करेगा। अभी भी ज़रूरत है जहाँ शांति से बैठ करके आपको कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, जो नई जनरेशन के लिए आपको कुछ बना के रखना पड़ेगा। वो काम तो यही पीढ़ी करेगी जिसका अपना कमिटमेंट है, वो सारी चीज़ें। लेकिन नई पीढ़ी तक वो कैसे छोटे छोटे हिस्सों में जा सके, वो शायद हमको करना पड़ेगा। तो शायद ये जनरेशन का जो गैप है वो भी ख़त्म होगा और हमारा भी उपयोग सही तरीके से हो पाएगा। भंवर जी, मेरा आपसे एक सवाल है, बल्कि 2 सवाल है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहीं नज़र नहीं आती है? अब आपने लेफ्ट में देखा होगा 50-60 के उनके डायमेंशंस हो गए हैं, बहुत सारे विभाजन हुए हैं, लेकिन आरएसएस में या फिर बीजेपी में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी नज़र नहीं आता। कहीं कुछ नज़र आ जाए वो नहीं आता। और दूसरा जो सवाल है वो असल में काउंटर नैरेटिव्स को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि उन्होंने इतना दुष्प्रचार जिसे कहते हैं ना, वो बढ़ा दिया है कि आप अगर किसी के सामने बोल दें नेशनलिज्म के बारे में, पैट्रियटिज्म के बारे में, या फिर भारत के बारे में, या फिर हिंदुत्व के बारे में, तो दूसरे सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। तो उन्होंने एक आने वाली नस्लों में जहर घोल दिया है।
तो आपको क्या लगता है कि काउंटर नैरेटिव, आपने टेक्नोलॉजी की बात ज़रूर की है, लेकिन काउंटर नैरेटिव के लिए टेक्नोलॉजी के अलावा भी हमें कुछ न कुछ ठोस लॉजिकल और फिर फिलोसफिकल या थियोलॉजिकल चीज़ें लानी चाहिए? थैंक यू। तो पहली बात तो ये कि ये जो एक नरेटिव बनाया गया कि आरएसएस बहुत विशाल, बहुत मजबूत एक संगठन है, बहुत अनुशासित है, मुझे लगता है कि उसके अंदर बाहर से वो दिखता है कि शायद उसको कोई भेद नहीं सकता है। आप अगर अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ भी संघर्ष उतना ही है। अभी वो संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि पावर स्ट्रगल भी आ गया उसमें। मैं जब था या मेरे से पहले जब आरएसएस था, उस समय तक उनके प्रचारक जो हैं वो साधु संतों की तरह होते थे। आज के प्रचारक फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, टिकट दिलवाते हैं और 5 करोड़ का बंगला अपने गांव में बनवा लेते हैं टिकट जिसको दिला रहे हैं उससे। और दूसरा ये कि अभी संघर्ष इस लेवल पे है। मैं अपने शहर का उदाहरण दूं आपको, वहां पर अभी विधानसभा के चुनाव हुए, बीजेपी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, बीजेपी का जो कैंडिडेट था, उसके खिलाफ आरएसएस ने अपना कैंडिडेट उतारा। दोनों तरफ भगवा स्कार्फ पहन करके, दोनों तरफ वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लगाते हुए प्रचार चल रहा है आपस में। और वो इतना भयंकर लेवल पे पहुंचा दोनों कैंडिडेट के बीच में कि उनके बीच में चाकूबाजी हुई और उसमें एक लड़का मारा गया और एक आदमी घायल होकर के कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहा। लेकिन और ये एक जगह की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने इस बार नोट की राजस्थान में, हो सकता है कि देश भर में होगी, लेकिन ये सारी चीजें मीडिया कहीं नहीं दिखाएगा। मीडिया सेक्युलर पॉलिटिक्स में जो छोटी मोटी बात होगी उसको बहुत बड़ा दिखाएगा कि देखो ये लड़ रहा है, राहुल गांधी ने ये कहा और जयराम रमेश ये बोल रहा है, उसने ये कहा, ये बोल रहा है। लेकिन इनके बीच में चाकू चल गए, लोग मर गए, उसके बारे में आपको खबर नहीं मिल रही होगी। तो बहुत कुछ चल रहा है इनके भीतर, लेकिन उन्होंने ये बता रखा है कि हम अभी भी उतने ही महान हैं, अभी भी उतने ही शुद्ध हैं, उतने ही संस्कारित हैं, उतने ही अनुशासित हैं। दरअसल उतना कुछ बचा नहीं है, वहां भी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ संघर्ष है। अब दिक्कत क्या है कि जब आप एक पैरा मिलिट्री फोर्स बनाएंगे जिसमें आपको ऑर्डर फॉलो करने हैं, तो वहां पे आपको अनुशासन दिखेगा। लेकिन वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन हो या बाकी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां आप लोगों को बता ही रहे हैं कि क्वेश्चन करो, डाउट करो, ये बात करो, वो बात करो। तो जब आप सिखाएंगे तो वो डाउट आप पे भी करेंगे, प्रश्न आप पे भी उठाएंगे, बहस होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे और सारी चीज होगी। मुझे लगता है कि बनावट में ही फर्क है, उनका बनावटी ऐसा है और हमारा बनावटी दूसरा है, और हम कभी भी एक वैसे नहीं हो सकते जैसे वो हैं, और होना भी नहीं चाहिए। तो उनका क्या है कि भविष्य में आप ये देखेंगे कि उनका जो विशालता है वो उनके पतन का कारण बनेगी, क्योंकि अब इतनी ज्यादा डिजायर है वहां पावर की, इतना ज्यादा पैसा चाहिए, इतनी खराबियां हैं उनके बीच में कि आप उन कहानियों को अगर सुन लें तो आपको लगेगा कि ये लोग हैं क्या, ये राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवाद और पता नहीं क्या क्या बात करने वाले लोग, ये ऐसे लोग हैं क्या। लेकिन वो कहानियां बाहर नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि उन कहानियों को भी बाहर लाने की जरूरत है। मैं निरंतर अपने इलाके में उनके लोग जो करते रहते हैं उन कहानियों को भी अपने फेसबुक वगैरह पे डालते रहता हूं कि देखो ये कितने फ्रॉड हैं, फाइनेंशियल कितना फ्रॉड है, कैरेक्टर के लेवल पे कितने फ्रॉड हैं, और क्या क्या लोग हैं ये सब। आप जैसे एक्सपोज करना शुरू करते हैं, लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये लोग भी ऐसे ही हैं जैसे बाकी के लोग हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने काउंटर नरेटिव की बात कही। मुझे लगता है कि देखिए, काउंटर नरेटिव में भी हम केवल प्रतिक्रिया में ना उलझ जाए कि वो हमको कुछ दे और उसका हम प्रतिक्रिया करते रहें। बजाय इसके हम अपना क्या बना सकते हैं और उसका वो जवाब दें। जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से बेहतरीन काउंटर नरेटिव उसने क्रिएट किया कि उन्होंने उनको उस तरीके से काउंटर नहीं किया, लेकिन एक ऐसा डिस्कोर्स डेवलप कर दिया कि उनको पलट करके आना पड़ा। और अभी पूरे इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में आप निरंतर देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की जो चीजें हो रही है,
वो उस पर प्रतिक्रिया करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम अपना कुछ बनाते जाएं तो शायद जो काउंटर मतलब उसको हम काउंटर नैरेटिव ही क्यों कहें, हमारा अपना नैरेटिव है, हमारा अपना डिस्कोर्स है, और उसकी तरफ जैसे योगेंद्र यादव और इन लोगों ने ट्रोल आर्मी के खिलाफ में एक ट्रूथ आर्मी बनाने की दिशा में कुछ काम शुरू किया। तो जब काम शुरू होगा तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है जिनके मुकाबले में उनके पास कुछ है ही नहीं। आइडियोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली तो वो 0 सन्नाटा है, लेकिन बात यह है कि हम ही हिले हुए हैं अंदर से, हमको अपने ही भरोसा नहीं रहा, हमको लग रहा है कि शायद हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो भरोसा लौट आए और हम अपना करते रहें तो ये तो फेल हो जाएंगे जल्दी। थैंक यू। Okay, I would like to thank Bhavar and Srinivas for an enlightening talk. I personally learnt a lot, and I think it's thought-provoking for everyone in the audience. Before you all leave, I would request you to please get a copy of Bhavar's book and get it signed from the author. Thank you all. Yeah, before we call it a night, a quick couple of announcements. One announcement, tomorrow evening exactly at 6:30 p.m. we have a very wonderful book discussion, The Many Lives of Sayyida X. The author Neha Dikshit will be here along with other panelists, Faizan Mustafa and also Professor Asim Prakash. So you're most welcome to join. And the other announcement, I'll give mic to the